A very good evening and warm welcome to all the participants. We are actually joyous about Mrs. Anu Kanwar. She has joined from Jaipur. She has a story which is extremely different. From the offbeat careers, one has chosen to focus on Kheti, that is agriculture, and she's an example for many other women entrepreneurs in the country. And she has specific plans to initiate women into agribusiness. And this story is very, very interesting as we are going to listen to her. Please join me in welcoming Mrs. Anu Kanwar. Madam, good evening and welcome to this conversation. गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी और जो भी लिसनर्स है और जो हमें देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल लाइफ में सबके लिए जो टाइम है बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी ने अगर इतना टाइम निकाला है तो वो एक बहुत वैल्यूबल चीज होती है हम सबकी लाइफ की टाइम। तो वो जो टाइम आपका जो टाइम आप मेरे को दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और मुझे बहुत पूरी बहुत बहुत उम्मीद धन्यवाद। है कि कुछ ना कुछ अच्छा लर्न होगा या फिर कुछ अच्छा मिलेगा। Very good, very good. Thank you, ma'am. I will do a brief introduction and then I'll request you to start the conversation. Okay, ma'am. So these are Wise Views Leadership Conversations, and this is 143rd such conversation. We hold these conversations every Friday. And as I mentioned, this session is going to be about women in agribusiness, a journey to empower. And Mrs. Anu Kanwar is ready to talk to us. So this introduction and her opening remarks will be for the first 25 minutes or so, followed by another 40 minutes or little more than 40 minutes of Q&A. This Q&A will come in two clusters. First cluster will be handled by Professor Prasad, and I will come back for the second cluster. It is my privilege to make this introduction. She is the rising star and extremely proud of her. And it's a great opportunity for us to understand her journey and learn from her. Mrs. Anu Kanwar Kanawat. She hails from a conservative upper-class family of Sisodia Rajputs in Bhilwara, Rajasthan. The girls there are not very educated, and she faced opposition when she expressed her desire to study after class 12th. After her 12th, she appeared for the Rajasthan Joint Entrance Test for agriculture and secured the first position. Her family then allowed her to pursue a BSc from Maharana Pratap University of Agriculture and Technology based in Udaipur. When Mrs. Anu Kanawat was working as an assistant professor of agribusiness at a university in Rajasthan, she accompanied her students to Dehradun for a training program. They went to a mushroom training center where the students learned about its cultivation and processing. The visit familiarized Mrs. Anu with a potential business opportunity, something she had been dreaming of for years. She then procured the mushroom spawns online from Dehradun and made compost the base for the growth of mushrooms and using locally available wheat straw. She began oyster mushroom cultivation on a trial basis in 2020. So this story is about 4 years now. Her startup, Amalda Organic Foods, is now set to clock 1 crore in revenues. She trains farmers and women for free in mushroom farming, which requires an investment of less than 500 rupees. However, despite an entrepreneurial mind since childhood, she did not get any opportunity to realize her potential. Mrs. Anu took the trademark for her first product, Shroom Lady, that's the name of the product, targeting women, and set off on her entrepreneurial journey with Amalda Organic Foods and Research Center, named after her village. Her firm now offers 20 products which are sold online through Amalda's Facebook and Instagram pages. To expand her market and revenue, she is planning to launch products using cordyceps mushroom, which has long been used in traditional Chinese medicine and is said to improve immunity and energy levels, besides having other benefits. Mrs. Anu procures mushrooms from 30 farmers across Rajasthan. Amalda Organic Foods has also received funding of 15 lakhs from the Minister of Agriculture's RKVY Raftar scheme, which focuses on the development of agriculture and allied sectors. Her company is targeting a turnover of rupees 1 crore in the next fiscal, as we mentioned earlier. Her main aim is to empower as many women as possible and bring down costs of healthy foods so that more and more people can access them. Currently, Amalda Organics grows mushrooms for processing into products and also trains farmers in their cultivation. She has trained over 1,000 people for free in oyster and button mushroom cultivation, besides conducting certified training programs for around 3,000 students. Mrs. Anu also gives training to students in the central government's Navodaya Vidyalayas. She encourages people towards mushroom entrepreneurship
as it is a low investment business and the market demand is good. So thank you very much, ma'am, for joining. I will also take 1 minute to introduce my colleague, Professor R. Prasad. He is the Senior Director in Academic Wing of ICFI Group. He brings a rich experience of 3 decades. He holds BTech from IIT Bombay and PGDM from IIM Kolkata. Welcome, Professor Prasad. Thank you very much for joining. Now it is over to you, ma'am. We are extremely happy to listen to you, your story. You can use English and Hindi, mix it. We will understand everything. We may not be able to speak in as good Hindi as you would do, but we will do English and you can do Hindi. We will understand everything. Thank you so much, ma'am, once again, and please start. थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी सर ने बताया है, वैसे पूरा इंट्रोडक्शन जो मेरा था सर ने दे दिया है स्मॉल। तो मैं मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट करना चाहूँगी कि कहाँ से मैंने एजुकेशन की और कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ से ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में है कि मुझे एग्री बिजनेस ही करना चाहिए और मुझे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो स्टार्ट मैं करूँगी कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है अमलदा, जो कि मेरी कंपनी का नाम भी है, अमलदा ऑर्गेनिक फूड एंड रिसर्च सेंटर। तो उस गांव में ऐसी कंडीशन थी जब मैं 10 से 15 साल के बीच में कि वहां पर कोई बस भी नहीं आती जाती थी और बहुत ही एक बस आती थी, वो भी 2-3 दिन में एक बार आती थी और कई कारणों से बस भी बंद हो जाती थी। और हमारे जो गांव है चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और उसका जो रूट है वो अंदर एक ही गेट है, मतलब गांव के एंटर होने के लिए एक ही रूट जाता था। तो हमारे को मतलब 15-15, 20-20 किलोमीटर हम अगर हमें कहीं कॉल भी करना होता था या फिर कहीं फोन भी करना होता था, कहीं मैसेज करना होता था, तो 20 किलोमीटर गांव के बाहर जाके हमें मैसेज करना होता था। ये बात है जब मैं 15 ईयर ओल्ड थी उस टाइम की। इसको कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और जब मैं स्टडी करने के लिए बाहर निकली और वहां जब मुझे कुछ मेडल्स वगैरह मिलते थे तो मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं अपने घर पे या पेरेंट्स को बताऊं कि मुझे मेडल मिले हैं। बट ऐसा इंसिडेंट होता था कि सब लोग बहुत खुश होते थे बट मैं पेरेंट्स को भी नहीं बता पाती थी क्योंकि हमारे जो कनेक्शन थे वो नहीं होते थे। जैसे मैं उदयपुर, राजस्थान में एक छोटा सा एक सिटी है जो उदयपुर है, तो उदयपुर के अंदर में जब स्टडी करने गई तो वहां मैं एथलेटिक्स चैंपियन रही और नेशनल में मैंने काफी मेडल्स लिए वहां पर। तो उस टाइम पे जब मुझे मेडल मिलते थे तो बहुत इच्छा होती थी कि मैं अपने गांव में या घर पे बताऊं, बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि जब लेटर लिखते हैं तो लेटर तो बहुत काफी टाइम में पहुंचता था और वो जो फीलिंग होती थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और वहां पर जो सबसे बड़ा जो ट्रेडिशन था मेरी फैमिली का, हम सिसोदिया फैमिली, राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो राजपूत फैमिली में हमारा एक कल्चर है कि लड़कियों को जल्दी से मतलब 17-18 साल से के बाद शादी कर देनी चाहिए। और ये पहले कल्चर नहीं था, जब ओल्ड टाइम के अंदर जब अंग्रेजों ने राज किया और काफी ऐसी चीजें हुई उसके बाद से ये कल्चर अडॉप्ट कर लिया राजपूतों ने। बाकी पहले जो था वो बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन था, मतलब जो हमारी रानियां महारानियां सब होते थे वो सब युद्ध में जाते थे और काफी अच्छा था। मगर उस कल्चर को उस टाइम पे जो चीजें हुई उनको हम लोगों ने ऐसा अडॉप्ट किया है कि अब वो हमारा कल्चर बन गया है कि। और जहां मेरी शादी हुई वहां पर भी मुझे घूंघट निकालना पड़ता है, अभी भी निकालती भी हूँ मैं। तो उसका ये कारण है निकालने का कि मैं एजुकेटेड होते हुए घूंघट इसलिए निकालती हूँ कि कहीं हमसे जो बड़े लोग हैं उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट ये जो प्रथा है ये हमारी प्रथा नहीं थी और ये प्रथा हमने अडॉप्ट की हुई है क्योंकि पहले के जब जितने भी आप जो रानी इसके जो क्वींस थे उनकी अगर आप फोटोज देखेंगे तो उन्होंने घूंघट नहीं निकाली होती थी। तो ये कल्चर हमने अडॉप्ट किया। तो स्टार्टिंग में जब मैं छोटी सी थी और जब मैं देखती थी कि हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत कम थी और पहाड़ी एरिया होने के कारण वहाँ पानी भी अच्छा था बट वहाँ पर जो क्रॉप कल्टीवेशन था वो नहीं करते थे क्योंकि एक तो राजपूत फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और राजपूत होते हुए खेतों में जाना एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा एक टास्क था।
उनको लगता था कि हम एक मतलब एक राजा की तरह हम जी रहे हैं, तो हम खेत पे क्यों जाएं। और जब कोई खेत पे नहीं जा रहे हैं तो कल्टीवेशन करने का कोई मतलब नहीं है। जिनके भरोसे कल्टीवेट करते थे वो उनका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं आता था। और उसके बाद जब वहां पर जो प्रोडक्शन कम आने लगा और जब मेरे को हायर स्टडी के लिए जाना था तो पैसा नहीं था, तो मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों है। और कुछ फार्मर्स वहां पे, जो कुछ फार्मर्स को देखा तो उनकी भी हालत बहुत खराब थी वहां पर। तब मैंने पापा से बोला कि मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है, बट मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं था कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों है। उसका रीजन था कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो फैमिली खेतों में नहीं जाती थी। एक कारण तो मेन मुद्दा ये था। दूसरा कारण, हर एक जो एक फार्मर है अगर वो अपने फील्ड पे नहीं जाएगा, कोई भी फार्मर हो, बड़ा से बड़ा फार्मर हो या एंटरप्रेन्योर हो, अगर वो खुद अपने काम को नहीं करता है तो सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक तो कारण बड़ा ये था। दूसरा कारण ये था कि हम लोगों को जो क्रॉप कल्टीवेशन है, कौन सा क्रॉप करना है, ये भी गांव में पता नहीं था। कि एक ट्रेडिशनल खेती जो कर रही थी, जैसे कि आपने मेज ग्रो कर लिया, आपका व्हीट कल्टीवेशन हो गया, तो इस तरीके से वहां पर काम चल रहा था। तो उसी टाइम पे मैंने एक स्कूल, हमारी स्कूल थी वो 10th तक स्कूल थी हमारे गांव के अंदर। अच्छा, उससे पहले मैंने जो स्टडी की तो मैंने अपने ननिहाल में जाके स्टडी की थी, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा माहौल नहीं था। मैंने कहा कि मैं ननिहाल में जाऊंगी। और ननिहाल में जब मैंने वहां पर जाहिर की स्टडी करने का कि यहाँ करूंगी, तो वहां भी एक छोटा सा गांव था और वहाँ स्कूल थी नहीं। बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां जाऊंगी तो मुझे स्टडी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत रोक टोक है और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं ननियाल गई तो मुझे 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल से वहां स्कूल जाना पड़ता था। और एक मेरे जो मामा जी थे उन्होंने मेरे को साइकिल दिलाई और उस पे मैं स्कूल जाती थी। तो वहां पर मुझे कुछ चीजें मिली। वहाँ कुछ जो टीचर्स थे वो चित्तौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से आते थे। तो वो पेपर साथ में लेके आते थे, उनके घर पे पेपर आता होगा तो उनके साथ में। तब उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे एग्रीकल्चर की स्टडी होती है और आप एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी सिखाई जाती है, मतलब कल्टीवेशन सिखाया जाता है आपको कि हाउ टू कल्टीवेट क्रॉप। तो उस में फिर मैंने वहां से 8th पास की और फिर मैं वापस गांव आई। और मैंने कहा कि मुझे जो है कल्टीवेशन या खेती ही सीखनी है। तो उस बात पे बहुत बड़ा मुद्दा हुआ घर पे कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ जाना चाहते हैं, और इसको खेती करनी है। और अगर खेती करनी है तो सीखना क्यों है, मतलब एजुकेशन क्यों लेनी है, खेती तो हमारे यहीं पर है। और खेती करके आप खेत पे जाओगे क्या, सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये था कि खेती करके क्या खेत पे जाओगे आप। तो मैंने उस टाइम पे कुछ जवाब नहीं दिया, बट मैंने इतना पापा को समझाया कि मुझे क्रॉप कल्टीवेशन सीखना है, किस तरीके से होता है, और उसके बाद मुझे आगे जो भी करना है मैं आगे करूंगी। और ऐसे जब पेपर में मैंने पढ़ा कि एक जेट जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट होता है, उसके थ्रू आपको सरकार पूरा पैसे देती है आपको स्टडी करने के लिए। आपके हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उठाती है, सिर्फ आपको फूड के लिए आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की और अच्छा लक और थोड़ी मेहनत थी। तो मेरा जेट जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट उदयपुर में हो गया था सिलेक्शन। और जब उदयपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ तो एक बहुत बड़ा उसमें भी एक चैलेंज था कि एक लड़की को कैसे उदयपुर भेजा जाए। और मेरे पेरेंट्स उदयपुर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे कोई रिलेटिव थे, उनको मैंने बाहर मतलब 15 किलोमीटर आगे जाके कॉल किया उनके नंबर लेके कि मुझे उदयपुर आना है और आप इसके लिए मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे उदयपुर में एडमिशन मिला। जब मेरे पेरेंट और तब भी मेरे पेरेंट्स ने कॉलेज कभी नहीं देखी, मतलब मेरी कॉलेज कभी उन्होंने देखी नहीं कि कॉलेज कैसी होती है। मैं खुद वहां गई और मेरा एडमिशन कराया और मेरा जो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एक गांव से जब मैं बिलोंग कर रही हूँ और वहां पर जब स्पोर्ट्स देखे मैंने, तो एक एथलेटिक्स के अंदर एक डिस्कस थ्रो होता था। तो मैंने ऐसे ही उठा के उसको डिस्कस को फेंका, मतलब जो हिंदी में तस्त्री बोलते हैं और डिस बोलते हैं उसको। तो मेरा फर्स्ट पोजीशन लगा। तो यूनिवर्सिटी में मेरे को 3 बार मेडल मिले। एक मेरे को 1500 मीटर रेस में मिला और एक शॉर्ट पुट में और एक डिस में। तो ये एक से नॉर्मल सा मिल गया था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा है और मैं गेम के अंदर जा सकती हूँ।
मगर हमारे जो भारत के अंदर उसमें ऐसा सिस्टम था उस समय पर कि स्पोर्ट्स को ज्यादा एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसी टाइम पे हरियाणा में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का एक था, तो उस टाइम फंडिंग नहीं मिली मेरे को। और उसके बाद जब मैं एग्रीकल्चर की स्टडी कर रही थी, और मैंने उस 4 सालों में ये सीखा कि इकोनॉमिक को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, फार्मर इकोनॉमिक को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, या ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिससे हमारे जो राजस्थान है उसकी एक इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो सकती है। जैसे कि आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर पानी कम है, और मतलब कुछ क्षेत्रों में बहुत पानी कम है, जैसे बाड़मेर और इधर जैसलमेर की तरफ, इधर तो पानी है ही नहीं। और भीलवाड़ा चित्तौड़ इस साइड में भी पानी बहुत कम है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज दुनिया में जो है वो पानी का ही है, कि पानी से कैसे वो किया जाए और क्रॉप कल्टीवेशन पे कैसे ध्यान दिया जाए। तो इसी पे मैं फोकस कर रही थी उस टाइम। फिर मुझे लगा कि मुझे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहिए हायर स्टडी के, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बिजनेस कैसे करूं, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे, और अभी तो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड थी मैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से ही मेरे को पढ़ाया, मतलब कॉलेज से मैं पढ़ रही थी। तो सेकंड ऑप्शन जब मेरे को लगा कि मुझे अभी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहिए, और वहाँ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलता है, तो उसके थ्रू मैं कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में जा सकती हूँ, और उसके थ्रू भी अच्छी नॉलेज लेके फिर मेरे गांव में वो इंस्टॉल कर सकती हूँ। तो कोइंसिडेंटली मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो गुजरात में पालनपुर के अंदर हुआ। पालनपुर में SDU सरदार कुशीनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब मैं वहाँ सिलेक्शन के तौर पे गई, तो एक बहुत अच्छी कॉमेडी हुई थी, क्योंकि हम 5 लोग राजस्थान से थे, और 5 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन कर लिया था, बट उसी साल से गुजरात में मना कर दिया गया था कि आउट ऑफ स्टेट को हम नहीं लेंगे। बट हमारा वो पहले एनरोलमेंट कर चुके थे, तो उसके लिए हमने 5 लोगों ने 15 दिन तक स्ट्राइक की। VC सर के ऑफिस के सामने हम जाके बैठ जाते थे, और हम बोलते थे कि हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि घर से हम बोल के आ गए थे, कपड़े लेके आ गए थे कि हमें पढ़ना है, और अगर हम वापस जाते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता वापस आना। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि यहीं रह के पढ़ना है। तो मैंने 4 लड़के थे मेरे साथ, और एक मैं खुद थी। तो उन लड़कों को मैंने समझाया कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि गलती इन लोगों की है, इन लोगों ने हमारे को इनवाइट किया, और फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं हमारे पास लेटर है, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम राजस्थान के लोगों को या आउट ऑफ स्टेट को बंद कर रहे हैं। तो 2012 और 13 के अंदर गुजरात में एडमिशन बंद हो चुके थे बाहर के लोगों के लिए। बट हमने VC सर के वहां पर रोज स्ट्राइक पे बैठ जाते थे, तो फिर VC सर ने अलाउ किया। लास्ट में हार मान ली उन्होंने कि ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो हमारा एक लास्ट बैच था जो हम वहां से स्टडी कर रहे थे। फिर उसके बाद देखिए, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, और उन्हीं स्ट्रगल से हमारे को लर्निंग मिलती है। अगर स्ट्रगल लाइफ में ना हो तो लर्निंग मिल नहीं सकती, और स्ट्रगल के बिना लाइफ भी अधूरी है। तो उसके बाद हमारे को लगा कि वहाँ प्लेसमेंट होना तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मतलब एग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर उस टाइम पे प्लेसमेंट नहीं थे। तो हम लोगों ने, हमारी पूरी क्लास ने मिलकर एक टीम क्रिएट की, और हमने प्लेसमेंट के लिए वहां पर किया। तो सबसे टॉप जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनमें हमारा फर्स्ट बैच निकला, और मल्टीनेशनल कंपनियों में हमारा सिलेक्शन हुआ, जिसमें एक बायर क्रॉप साइंस नाम से एक कंपनी है, उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ, और वहां मैंने 6 मंथ वर्क किया। तो इससे फायदा ये हुआ कि आज भी गुजरात के अंदर हमारी एक ट्री बनी हुई है, उसमें मेरा नाम है बीच के अंदर, और एक ट्री प्लांट लगा रखा है जिसमें हमारे पूरे बेच का नाम है, और स्कूल कॉलेज के अंदर जाते ही हमारा नाम है उसके अंदर। तो जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमें जो गॉड है बहुत अच्छा गिफ्ट भी देता है, और अगर स्ट्रगल नहीं होता है तो गिफ्ट भी नहीं मिलता, और आगे कुछ अचीवमेंट्स भी नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद मैंने स्टडी कर ही रही थी कि एक स्पीच था गिफ्ट सिटी नाम से। तो वहां पर हम गए, और वहाँ मोदी जी का एक स्पीच था। उससे हमने देखा, अच्छा वहां पर जो स्टूडेंट थे गुजरात में, वो कभी जॉब की बात ही नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि हम, मुझे ये बिजनेस करना है, या ऐसा बिजनेस करना है, या फिर मुझे चिप्स मेकिंग पे जाना है चिप्स लेके। तो उनके जो आइडियाज थे सारे बिजनेस वाले थे। और गुजरात में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आप बिजनेस करो। अब हम प्रोडक्शन सारा गुजरात और साउथ के अंदर होता है, जैसा आप जानते हैं साउथ के अंदर जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सब साउथ के अंदर है।
और वो क्रॉप कल्टीवेशन करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके मार्केट सारा राजस्थान में है, तो सारा पैसा उल्टा जा रहा है। मतलब प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में भी हो सकता है, बट अभी तक ये चीजें देखी नहीं जा रही, सोची नहीं जा रही है। तो फिर उसके बाद जब गुजरात में मैंने मोदी जी को देखा, और वहाँ के मेरा जो फर्स्ट बायर कंपनी के अंदर हुआ वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हुआ था। मेरा जो एमएससी जो थीसिस थी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ही थी। तो मैंने वहां पर देखा कि गुजरात के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक वर्ड बहुत फेमस है, और उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल है वो फार्मर्स की वो बहुत चेंज हो रही है, क्योंकि उनकी जो एमएसपी है, जो रेट है, वो बिल्कुल फिक्स है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो भी कंपनी लेगी, जैसे सपोज कोई भी कंपनी लेती है तो उस कंपनी का रेट फिक्स हो जाता है कि आलू आप आपसे इस रेट में लेंगे, मेज आपसे इस रेट में लेंगे, और आप जो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स प्राइस है। तो फार्मर्स को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो सारे फार्मर है मिलके वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो जो भी कंपनी हो मशीनरी प्रोडक्शन के लिए सारी फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को हम राजस्थान में भी लेके आए, और राजस्थान के जो फार्मर्स है उनकी लाइफस्टाइल भी हम चेंज करें। उसी टाइम लगभग मेरी एज 24 हो गई थी, तो पेरेंट्स को टेंशन ये थी कि अब शादी करनी है, और मेरे को टेंशन ये थी कि मुझे आगे कुछ करना है। तो उस टाइम पे शादी का एक वो चल गया था, मतलब मैसेज आने लग गए थे, और मेरे जो जितने भी बड़े थे मेरे से, उन सब ने कहा कि अब कंपलसरी है कि शादी तो करनी है। और उस टाइम मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी बायर कंपनी के अंदर। मगर मेरा जो पोस्टिंग हुआ था फर्स्ट, वो कच्छ गुजरात के अंदर हुआ था। तो थोड़ी बहुत गुजराती मैंने वहां पर सीखी, और उसके बाद प्रेशर हुआ कि शादी करनी है, तो उसकी वजह से मुझे राजस्थान आना पड़ा, और मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई। अच्छा, हमारे राजपूतों में एंगेजमेंट के लिए लड़के और लड़की को बता मतलब मिलाया नहीं जाता है, ऐसे ही बोल दिया जाता है कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी है और आपको शादी करनी है। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और अगर लड़कियां आगे होके कहीं कॉल कर देती है या कुछ पूछ लेती है तो आपकी एंगेजमेंट टूटने का जो खतरा होता है बहुत भयंकर रहता था। अब तो लोग समझदार हो गए हैं, बहुत चीजें हो गई है, और समझने भी लगे हैं। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ा रिस्क लिया था कि मेरे हस्बैंड को मैंने कहीं फेसबुक आईडी से अपने कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के उनको कॉल किया, और मैंने बताया कि आप जिस लड़के से शादी करना चाहते हो उसके जो ड्रीम्स हैं वो इस तरीके के हैं, मैं खेती करना चाहती हूँ और मैं फार्मर्स की लाइफ में चेंज लाना चाहती हूँ। तो उन्होंने उस चीज को, ये एक लक था मेरा कि मेरे हस्बैंड काफी अच्छे मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, और उन्होंने कहा कि देखो इस चीज को अपने को अभी बताना नहीं है कहीं पर भी, बट आप आराम से शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, और शादी के बाद आपकी जर्नी हम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद मैंने शादी की 2017 के अंदर, और उसके बाद मैंने वापस से मैं जयपुर आई शादी के 6 या 7 मंथ के बाद में। और जयपुर में वापस एक यूनिवर्सिटी में मुझे रोजगार चाहिए था, क्योंकि बिना पैसों के लाइफ चलने वाली नहीं होती है। तो एक यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब किया। उस यूनिवर्सिटी में जॉब करते हुए मैं कुछ स्टूडेंट को लेकर वहाँ गई थी, डीएमआर, डायरेक्टर रिसर्च सेंटर सोलन के अंदर। तो वहां पर जब मैंने देखा कि मशरूम एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिलती है, जो किसी भी दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर विटामिन डी नेचुरल नहीं पाई जाती है। या तो हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है, या फिर मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा आप अगर 1 किलो कोई भी प्रोडक्शन लेते हैं तो कम से कम भी आपको जो वाटर है कम से कम 12 से 15 लीटर, 20 लीटर, या कुछ ऐसी जो अपनी कुछ व्हीट क्रॉप हो गई, या फिर आपकी जो राइस होगी, राइस के अंदर तो आपको 200 लीटर तक पानी देना पड़ता है। और इधर मशरूम में आपको 1 kg के लिए 2 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। इसके अलावा आपको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, जितने भी मशरूम के अंदर न्यूट्रिशन है वो सारे आपको मिलते हैं, और दूसरी क्रॉप से कहीं ज्यादा बेटर है। तो फिर मैंने स्टूडेंट को सिखाने गई थी मैं, बट मुझे लगा कि यही एक मेरा फील्ड होना चाहिए, और इसी पे मुझे काम करना चाहिए राजस्थान के अंदर, क्योंकि पहला ऑप्शन तो ये मिल गया कि राजस्थान में पानी नहीं था। दूसरा ऑप्शन, जो भी ऐसी लेडीज है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, मैंने तो स्ट्रगल करके समझा के और बहुत सारे चीजें करके मैं बाहर आ गई बहुत मुश्किलों से। बट कुछ ऐसी लेडीज होती है जो ये हिम्मत नहीं कर पाती है, वो सोचती है कि मैं घर में ही काम करूं और इनकम जनरेट करूं। तो उसके लिए जो मशरूम है वो इंडोर फार्मिंग होता है। इंडोर फार्मिंग मतलब
इसको हम रूम के अंदर कल्टीवेट करते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करके करते हैं। तो पहले ऐसा था, जब मैं वहां गई थी राजस्थान से बाहर सीखने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान में तो ये क्रॉप हो ही नहीं सकती, और होगी तो भी बहुत ज्यादा आपको मेहनत और पैसा लगेगा, कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाके आपको मशरूम कल्टीवेशन करना को मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना था कि जो भी चीज बोलते हैं लोग, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं घर पे आई, और मैं यहाँ जयपुर में तब रेंट पे रह रही थी, तो मेरे पास यहाँ पर तो कोई मकान या कमरा था नहीं। ससुराल में हम ऐसी चीजें कर नहीं सकते थे, मतलब वहां से तो हम वैसे भी यहाँ से आए थे कि हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, झूठ बोल के आए हुए थे। तो यहाँ ससुराल में हम अप्रोच नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से मैंने मेरे जो मदर का जो घर था, उनको बोला कि आपके जो वहां पर पहले हॉर्स के लिए बहुत जगह खाली थी हमारे पास, नीचे हॉर्स रखते थे। तो उसको हम ठाण मतलब राजस्थानी में एक लैंग्वेज है ठाण, तो उसमें हम बांधते हैं उन हॉर्स को। तो एक रूम जैसा ही होता है, मगर पहले के जो मकान होते थे हमारे, वो काफी पुराने और बहुत बड़े होते थे। तो उसमें जो उनकी जो दीवारें हैं, जो उनकी जो वॉल कैपेसिटी है, वो काफी बड़ी होती थी। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया मशरूम कल्टीवेशन। सबसे पहले मैंने ऑयस्टर मशरूम वहां से लिया, और मैंने समझा कि ऑयस्टर मशरूम का जो टेम्परेचर है, वो आप 21 से लेकर 30 तक आप मैनेज कर सकते हैं, 30 तक। तो मैंने एक टेम्परेचर मीटर लिया और अपना ऑयस्टर मशरूम वहां पर स्टार्ट किया। और जब ऑयस्टर मशरूम स्टार्ट किया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा था कि नहीं होगा इस बार तो, बट हम अलग अलग टेम्परेचर पे डिसाइड करेंगे। और उस टाइम पे लकीली थोड़ी सर्दियां भी थी, और जो मंथ चल रहा था वो शायद जनवरी के लगभग था, तो जनवरी फरवरी और मार्च तक मुझे एक अच्छा क्लाइमेट मिल गया। और जो मशरूम हुआ मेरा बहुत ही अच्छा और चोखा देने वाला था। उसी टाइम थोड़े दिनों के बाद में एक बार वो जो मैंने ट्रायल ली, उसके बाद मैंने एक बड़ा ट्रायल लिया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस हो चुका था कि राजस्थान में भी मशरूम पॉसिबल है। जो लोग बोलते हैं कि राजस्थान में मशरूम पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज एक मिथ हो गई मेरे सामने। तो मैंने फिर दूसरा ट्रायल लिया। दूसरे ट्रायल में हमारे घर पे जितने रूम थे, 4-5, उसमें कम से कम मैंने 5,000 बैग एक साथ मशरूम के लगा दिए थे। और उसी टाइम कोविड-19 शुरू हो गया था, और कोविड की वजह से जो मेरा प्रोडक्शन था वहां तो बंद, बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। तो कोविड के टाइम पे मैं उनको सेल नहीं कर पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि अब इसको क्या करें और कहाँ भेजें। तब फिर मैंने वापस से स्टडी की, और मुझे समझ में आया कि मशरूम को आप ड्राई कर सकते हैं। जो ऑयस्टर मशरूम है उसको आराम से आप ड्राई कर सकते हैं, और आप सनलाइट में उसको अगर ड्राई करते हैं तो उसमें विटामिन डी इंक्लूड हो जाती है, और आप अच्छे से उसकी कटिंग करके ड्राई कर लीजिए। तो मैंने उसको ड्राई किया खराब होने से बचाने के लिए। और जब कोविड स्टार्ट हो गया था, लोगों की इम्यूनिटी खराब होने लगी थी, उस टाइम पे लोग थक रहे थे। और तो कुछ लोग जो मैंने मशरूम किया था, तो कुछ गाँव में कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि मशरूम एक जहर है, मशरूम से मर भी जाते हैं। मतलब एक जो लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर मैंने लोगों को वहां समझाया कि मशरूम जहर नहीं है, वो जो पुरानी मशरूम ऐसे ही उग जाती है, ऐसे ग्रो हो जाती है नॉर्मल, उसमें पॉइजन हो सकता है। बट जो हम मशरूम कल्टीवेट करते हैं, उनके जो स्पोन है, सीड है, वो हमारे लिए हुए सीड होते हैं, वो पॉइजनस नहीं होते हैं। तो उसी से हमने स्टार्ट किया। बट मैंने मशरूम बोल के लोगों को नहीं दिया, फिर उसका एक पाउडर क्रिएट किया मैंने, और छोटे छोटे से पाउच बना के जो लोग बीमार थे, जो लेडीज बीमार थी, उनको देना स्टार्ट किया कि ये एक दवाई है, आप इनको लीजिए। तो दवाई का नाम जब सुना लोगों ने, तो लोग लेने लगे, और वापस लोग आने लगे मेरे पास कि मुझे ये दवाई और चाहिए। तब मैंने वहां लोगों से पूछा कि आपको ये दवाई क्यों चाहिए, क्या हुआ इसमें ऐसा। तो उन्होंने बोला कि मुझे 3 दिन के अंदर मुझे एनर्जी फील हो रही है। किसी ने बोला मेरे घुटने में जो दर्द था वो खत्म हो गया। कि मतलब सभी के जो अलग अलग जब रिजल्ट आए, तब मेरे को बहुत खुशी हुई उस दिन कि ये जो मशरूम है, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है, और ये दुनिया का मतलब एक ऐसा फूड बनने वाला है जो लोग अगर कभी, जैसे हम सेना की बात करें, और अगर सेना के अंदर बाहर अगर हम फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे अगर आप मशरूम पाउच प्रोवाइड करवा दें सेना के लोगों को, या ऐसे लोगों को जो न्यूट्रिशन नहीं यूज कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों को। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की, जो बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है।
तो उसके लिए भी हम ये मशरूम के किट छोटे छोटे बना के हम दे सकते हैं। तो जब ये रिजल्ट आया और जब उस रिजल्ट को मैंने फाइंड आउट किया, फिर लोगों को उसको लेने में क्या प्रॉब्लम थी ये सब चीजें समझा, तो कोविड के टाइम पे सारी चीजें मुझे सोल्व हो गई कि इसको लेने में कैसे प्रॉब्लम आ रही है, इसको पाउडर डस्टिंग बनाना पड़ेगा, कैप्सूल बनाने पड़ेंगे। तो कोविड के बाद जो मेरा नेक्स्ट मिशन था, उस टाइम पे कुछ पैसे भी मेरे काफी लोगों से लेने पड़े मुझे, और दे भी नहीं पाई मैं उस टाइम पे। काफी टाइम के बाद उसको जब मैंने वापस यहाँ पर आई मैं, और उसी टाइम ऑनलाइन एक मैसेज आया हुआ था कि आपको स्टार्टअप इवेंट एक चल रहा था, RKVY रफ्तार, अभी स्टार्टअप इंडिया के नाम से चल रहा है ये प्रोग्राम, अभी भी प्रेजेंट में भी चल रहा है, बट प्रेजेंट में ये ऑफलाइन हो चुका है, पहले ये ऑनलाइन प्रोग्राम था। तो जब मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम में अप्रोच किया और स्टार्टअप इंडिया ने मेरे को सिलेक्ट किया, ऐसे ही जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ऐसे ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो MBA और ये सब करने से मुझे ये फायदे मिले कि आप लोगों से ऑनलाइन कैसे जुड़ना है ये फायदा मिल गया। अगर मैं एजुकेशन नहीं लेती तो शायद ये फायदा मुझे नहीं मिलता, ये बेनिफिट नहीं मिलता। तो एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि उनको स्टडी पूरी करनी चाहिए, पढ़ाई तो उनको नहीं छोड़नी चाहिए, कंप्लीट स्टडी के बाद उनको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहिए। तो इसके बाद हमने वहां पर जब मैंने किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मशरूम तो पाउडर बना रहे हो आप, तो कैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें क्वेरी थी। उन सबको मैंने रिसर्च किया, उसके हिसाब से सोल्व किया कि मशरूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है। इसके लिए केवल फूड सेफ्टी का लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई ड्रग है, तो इसको हम यूज ले सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, और 25 लाख का उस टाइम प्रोग्राम चल रहा था, बट उन्होंने उस टाइम पे मेरे को 15 लाख रुपीज का एक फंड दिया, जो ग्रांटेड था, उसको मुझे वापस नहीं देना था। तो उस फंड से मैंने मशीनें खरीदी और मेरी जर्नी स्टार्ट की। और स्टार्टिंग में मशीनों में भी प्रॉब्लम आई, और मशीनों को भी मुझे चेंज करना पड़ा। अभी हमारा जो पाउडर है काफी अच्छा और निकला। इसके बाद मैंने सुना कि एक 3 लाख रुपए किलो की जो मशरूम है वो ग्रो हो रही है, बट हिमाचल वाले ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हमारे अलावा ये मशरूम ग्रो नहीं हो सकती और 3 लाख रुपए के अलावा मिल नहीं सकती। तो ये एक चैलेंज था मेरे सामने कि ऐसा क्यों है, 3 लाख रुपए में ऐसा क्या बन रहा है या ऐसा। तो उसकी स्टडी की तो मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से हम इस मशरूम को कर सकते हैं, और 3 लाख की जगह 1.5 लाख में हम इसको सेल कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट हुए, मशरूम कैंसर के लिए बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। आप डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल है, आप डायबिटिक कोर्डिसेप्स मशरूम लेंगे, 15 डेज के अंदर आपका जो डायबिटीज है वो बंद खत्म हो जाएगा। और 3 मंथ अगर आप मशरूम लेते हैं तो आपकी डायबिटिक की गोलियां तक बंद हो जाती है। इतने अच्छे प्रोडक्ट को हम इस तरीके से ले रहे हैं कि 3 लाख रुपए किलो, 4 लाख रुपए किलो, तो लोग खरीदेंगे क्यों। तो मैंने उसको एक स्मॉल पैकेजिंग में कन्वर्ट किया, और ओनली 2000 रुपीज के अंदर 1 मंथ का एक कोर्स चलाया। उस कोर्स से जिनको बेनिफिट हो रहा है, और 12,000 के अंदर तो वो कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं शुगर पेशेंट, और आराम से अपना वर्क करने लगते हैं, और उनकी टेबलेट भी बंद हो जाती है। तो शुरू शुरू के अंदर मुझे इसमें भी चैलेंज आए कि जो टेबलेट चलती है, तो मैंने लोगों को ये बोला कि आप डॉक्टर से सिर्फ इतना बोलें कि आपकी जो टेबलेट की डोज है वो कम करते जाएं। तो जैसे जैसे टेबलेट की डोज कम हुई, तो अभी हमने कोडिसेप्स मशरूम भी बनाना स्टार्ट कर दिया, और कोडिसेप्स मशरूम को हम काफी लो कॉस्ट में जा रहे हैं। और ऑयस्टर मशरूम के अंदर सिर्फ 500 रुपए से कोई भी फार्मर अपने घर पे ऑयस्टर मशरूम कर सकता है। उसको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर उसके पास सिर्फ 500 रुपए है तो 500 रुपए से अपने घर पे फ्रेश मशरूम वेजिटेबल की तरह उगा सकता है। उसके लिए कोई एसी की जरूरत नहीं है, कोई टेम्परेचर मीटर की जरूरत नहीं है। हम जिस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हमारी बॉडी, जैसे आपको पता है 21 से लेकर 30 तक हम आराम से नॉर्मल रह सकते हैं, या 25-26 से नॉर्मल रह सकते हैं। तो जो ऑयस्टर मशरूम है वो बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह है, हमें जितना टेम्परेचर चाहिए आप उस मशरूम को उतना टेम्परेचर दे दीजिए, और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी दे दीजिए। ह्यूमिडिटी के लिए जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमिडिफायर लगाएं 1 लाख रुपए का, उसके लिए आपको सीधा सिंपल सा पानी में का छिड़काव करना है। और बिल्कुल लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में 500 रुपए के अंदर छोटी सी जगह में आप अपना मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं।
और इसकी ट्रेनिंग के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप 10,000 देके आप शिमला जाएं या कहीं दूसरी जगह जाएं। आप सिर्फ ऑनलाइन वेबिनार लेके आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं और अपने घर पे मशरूम उगा के रोज अपनी डेली डाइट के अंदर मशरूम खा सकते हैं और आप उसके रिजल्ट देखिए। अगर आपने डेली मशरूम खाया तो आपको 3 या 4 डेज के अंदर आपको इम्यूनिटी का पता चलेगा कि किस तरीके से। अच्छा, आपको इम्यूनिटी का पता कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए मशरूम नहीं खाने से पहले। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रन कर रहे हैं और आपका लास्ट स्टेज आ जाता है कि अब मैं नहीं भाग सकता। उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कितने सेकंड में आप कितने मिनट कर पाए। उसके बाद आप मशरूम खाना स्टार्ट कीजिए, कोई भी मशरूम हो। ऑयस्टर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम में 35% 100 ग्राम ड्राई के अंदर प्रोटीन होता है। और जो बटन मशरूम है उसके अंदर जस्ट हाफ 12 ग्राम प्रोटीन होता है। बट ऑयस्टर मशरूम में एक और बड़ा फायदा है, ऑयस्टर मशरूम 90% डाइजेस्टेबल मशरूम है, जिसको हम हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट करती है। और इसमें फाइबर होने की वजह से आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। मतलब जब से आप मशरूम खाना स्टार्ट करेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आपकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इसके अंदर, विटामिन डी है, F11 है, और इसके अलावा बी के जितने भी है बी वाले विटामिन बी, वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। प्रोटीन 35% मिलेगा। तो आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। और महिलाओं के लिए तो एक वरदान है ये। अब देखिए बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो बोलते हैं कि आप दूध में मिला के पीजिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन कंटेंट है वो बच्चों को दूध से मिल रहा है, ना कि उस प्रोडक्ट से मिल रहा है। मैं ये कहती हूँ आप मशरूम का पाउडर पानी में मिला के पीजिए, आपको 3 या 4 डेज में रिजल्ट आएगा, और इसकी गारंटी मेरी है। तो तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और इस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे मिलेट्स पे ध्यान दे रही है सरकार कि मिलेट्स से हमारे को इतना अच्छा फायदा मिल रहा है, वैसे मशरूम पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसका एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर हम हमारे इंडिया की और जो राजस्थान के लोग, जैसे राजस्थान जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, राजस्थान नहीं महाराष्ट्र हो गया, या बहुत सारे ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, उनकी भी हम इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना चाहते हैं, तो हमें मशरूम पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो हमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है मशरूम खाने में सबसे पीछे है। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखें इंडिया की, वो भी बहुत कम है। तो उन दोनों को बढ़ाने के लिए हमें मशरूम खाना चाहिए, और बिल्कुल लो कॉस्ट पे मशरूम। और लोगों ने मशरूम को ऐसा बना रखा था कि मशरूम वीआईपी लोगों के लिए है। वीआईपी मतलब कि जो 10,000 रुपए खर्च कर सके अपनी सेहत पे, उनके लिए है। मैंने राजस्थान के अंदर ये मिथ हटा दिया है। राजस्थान का जो हर इंसान जो मुझसे मिला है वो जानता है कि मशरूम एक सब्जी है। जितनी रेट में सब्जी आती है उतनी रेट में हम मशरूम लेके खा सकते हैं, और अपन को घर पे बना सकते हैं। और हम उनको लिए किट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये सब किट प्रोवाइड करवाना और ये सब एक अलग बिजनेस वो है। बट मैं तो ये कहती हूँ कि आप मुझसे प्रेरणा लीजिए और आप घर पे मशरूम उगाइए और खाइए, मुझे वीडियो भेजिए कि आज हमने मशरूम उगा ली है। तो छोटे छोटे बच्चों ने हमने एक बार एक प्रोग्राम किया था नवोदय विद्यालय में। जो नवोदय पूरा मतलब भारत के अंदर नवोदय विद्यालय की ब्रांच है, अभी पीएम मोदी के नाम से वो शायद चल रहा है, पीएम स्कूल के नाम से। तो उन स्कूलों में हमने जब दिया, तो आपको मैं कभी वीडियो शेयर करूंगी, हमारी फेसबुक पे आप वीडियो देखेंगे कि बच्चों ने खुद मशरूम उगा के हमारे को वीडियो भेजे हैं कि जो 10 या 12 साल के बच्चे थे उन्होंने मशरूम उगा लिया और उनके घर पे बताया, तो घर वालों को बड़ा सरप्राइज आया। और मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के फोन आए कि आपने जो सिखाया है ये हम खा रहे हैं और वास्तव में बहुत ही डिलीशियस है। और सबसे जो बेस्ट सब्जी बनती है वो ऑयस्टर मशरूम की बनती है। और सबसे सस्ते में जो मशरूम प्रोडक्शन होता है वो ऑयस्टर मशरूम होता है। तो फिर हम क्यों ऐसी लगाएं, क्यों हमें इतना खर्चा करना है करोड़ों का? और क्यों हम, अगर हम सिर्फ मतलब सिर्फ हम सोसाइटी की हेल्थ चाहते हैं, और सोसाइटी को हम चाहते हैं कि बदलें सोसाइटी को। और आजकल आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना जो गवर्नमेंट है वो सब ध्यान दे रही है। उसका कारण ये है कि हम सब चीजें केमिकल की खा रहे हैं। आप मशरूम को चाहें तो विदाउट केमिकल उगा सकते हैं। केवल आपको जो वीट जो ग्रास आती है उसको, जो ड्राई भूसा, ड्राई जो होता है वीट स्ट्रो बोलते हैं उसको,
व्हीट स्ट्रो को आप गर्म पानी में उबाल के सीधा सीड आप अगर अंदर डाल देंगे उसके, तो आपका एक मशरूम कल्टीवेशन हो जाएगा। और आपको कोई फ्री केमिकल है उसमें, हम भी हमारे प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि मशरूम की जो ड्राई होने के बाद 9 से 12 मंथ आराम से प्रिजर्व रह सकती है, उसके लिए कोई केमिकल की जरूरत नहीं होती है। तो जितने कैंसर पेशेंट है, और आजकल तो आप मिल्क का देख रहे हैं, तो मिल्क के अंदर हर कोई कंपनी फेल हो रही है। सारी कंपनियों के जो मिल्क है वो सारे फेल हो रहे हैं टेस्ट के अंदर कि इनमें केमिकल ज्यादा है। तो आजकल हर जगह से लोगों को टेंशन है कि हम अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखें। और एक मशरूम के अंदर सबसे बड़ा जो मुझे जो ये 15 लाख का जो फंड मिला था, वो एक कारण से मिला था। उसका ये कारण था कि मैंने ये बताया कि जितने यंगस्टर है, जितने यंग बच्चे हैं या लड़कियां हैं या फीमेल है, वो जब जिम करते हैं तो वो एक प्रोटीन खाते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो चाहे कोई सा भी प्रोटीन हो। अगर उस प्रोटीन को खाने के बाद अगर वो जिम नहीं करते हैं और बैठ जाते हैं या फिर कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, तो उसके कारण उनकी किडनी जा सकती है, किडनी फेल हो सकती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने पेपर में पढ़े होंगे कि जिम में करते हुए बच्चों की किडनी खराब हो गई, उनके और भी ऑर्गन्स खराब हो गए, और या हार्ट से उनको प्रॉब्लम हो गई। तो वो इस तरीके के जो प्रोटीन है जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रोटीन को ले रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने ये बताया कि जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम से ना किडनी खराब होती है आपकी, किडनी को प्रोटेक्ट करता है और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। और आप कितना भी मशरूम खा लें, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स अमाउंट में मशरूम खाएं, क्योंकि ये वेज है, आप वेज को जितना पसंद आए उतना खाएं। और इसकी इम्यूनिटी आपको बूस्टर ये कर ही रही है। तो ये जो ऑयस्टर मशरूम है एक तरीके से वरदान है, मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ है और ये सबके लिए भी वरदान साबित होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे और जितने लोग जुड़ेंगे और वेबिनार अटेंड करेंगे या फिर नॉलेज मिलेगी उनको, तो पक्का ऑयस्टर मशरूम अपनी जिंदगी में एक बार खाएंगे, ये मेरा भरोसा है। तो आप लोग में से जो भी ऑयस्टर मशरूम के पाउडर अभी इनिशियली हमसे लेना चाहेंगे, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वुमेन्स के लिए स्पेशल फ्री ट्रेनिंग है, हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। और बाकी के लिए चार्ज है तो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कभी मशरूम नहीं खाते थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मशरूम यूज नहीं किया, बट जब मेरे से मिले और मेरे से मिलने के बाद जब वो होटल में गए, तो फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने मशरूम का ही किया और मुझे वीडियो कॉल भी आए कि आपकी वजह से हमने आज एक रेसिपी सिलेक्ट की है जिसका नाम है मशरूम। और हमने कॉर्डिसेप्स मशरूम, सिताके मशरूम, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मशरूम है, बट जो सबसे लजीज डिलीशियस जिसका टेस्ट है, जो नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते उनके लिए भी बहुत बेस्ट ऑयस्टर मशरूम है। तो आप मशरूम खाएं। आज के वेबिनार से मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपनी डेली लाइफ के अंदर आप एक बार जरूर मशरूम यूज लें, ताकि आपका पूरी जो बॉडी है केमिकल फ्री रहेगी। एंटी कैंसर, आपको कभी कैंसर नहीं होगा लाइफ के अंदर, आपका जो लीवर कभी खराब नहीं होगा, आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी, और आपको मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो स्टेमिना है वो भी फ्री में मिलेगा। तो इस तरीके की ये जो एक मेरी स्मॉल स्टोरी है। और आगे मेरा एक मकसद है कि मैं पूरे भारत के अंदर मशरूम को इस तरीके से बिजनेस की तरह ना फैला के मैं ये बताऊं लोगों को कि मशरूम एक सब्जी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर पे, जैसे आजकल आपने पता होगा टेरिस गार्डनिंग कितनी अच्छी चल रही है, सब लोग टेरिस गार्डनिंग करने लग गए, तो मशरूम गार्डनिंग भी करें। एक पोर्शन लें अपना, मशरूम गार्डनिंग करें और उसमें अपनी मशरूम कल्टीवेट करके बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी हेल्दी रहें, और उसके लिए टाइम स्पेंड भी करें उसके साथ, मशरूम के साथ। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक मेरे लिए अचीवमेंट होगा। और सब मशरूम को जानेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देखिए ये सब लोगों के अंदर ऐसा होता है कि जब कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसको थोड़ा रिजर्व रखा जाए ताकि ये फैले नहीं दुनिया में, और वो करे। तो इस वजह से लोग उसको ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते। बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि मशरूम हर घर में जाए और हर जगह जाए और प्रोडक्शन करे। तो मुझे लगता है कि आपके कोई अगर सवाल हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अगर आपको डायरेक्ट भी मेरे से कभी मीटिंग करनी हो तो भी आप कर सकते Very good. Thank you, ma'am. Fantastic story. Fantastic story.
Thank you. So, friends, this is the journey of Mrs. Anu Kanwar, and she has explained it in her own unique style and an unstoppable, unique style in which her journey and milestones have come out for us to understand. It is a humble beginning. That's where it began. Societal hurdles did not deter her. Family traditions did not deter her. She pursued with great determination her education, made herself qualified, made herself knowledgeable, and then she has become a role model for many, as she has explained. So, ladies and gentlemen, thank you so much for joining. But I must appreciate ma'am, अनु जी, आपने जिस तरह ये स्टोरी बताया विदाउट यूजिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स, हम लोग आपके ही स्पीच के ऊपर, आपके ही स्टोरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, और ये बहुत आसान रहा सुनने के लिए और समझने के लिए। बट इससे ज्यादा बेहतर मशरूम की जो सेल कर सकते हैं, मशरूम के जो इवेंजलिज्म बोलते हैं हम, मशरूम इवेंजलिस्ट आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। Thank you so much, sir. आप बट अगर आप चाहे तो किसी और प्रोडक्ट पे भी ऐसा ही भाषण दे सकते हैं, ऐसा ही मोटिवेशन कर सकते हैं। आप बहुत ही इंस्पायरिंग है, और आपका जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग और इम्पैक्टफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम क्या करेंगे, Q&A सेशन, अभी जो वार्तालाप होगा वो तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगी। Okay. क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस 2 क्लस्टर में करेंगे। प्रोफेसर प्रसाद फर्स्ट क्लस्टर में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे सवाल करेंगे। फिर बाद में मैं कुछ और सवाल लेके, 2-3 सवाल लेके मैं भी वापस आ जाऊंगा, और उसी समय जो भी अपने मित्र है और उनके जो प्रश्न होगा, वो प्रश्न, फॉर एग्जांपल नए जो प्रश्न आए हैं, अदर देन व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड इन योर ओन स्टोरी, if it is a new question, we will definitely open the mic for them also. Okay, ma'am? So Yes, thank sir. you once again. It's wonderful listening Thank to you. There are several lessons, several myths that you have busted, and several directions that you have given for budding entrepreneurs, and especially for women. You have become a good role model, and I'm very, very happy that I met you at India Today Conclave. And from there, हमने जो स्नैक्स के टाइम में जो बातें की, वहां से शुरू हुई ये कहानी, और हमारे इक्फाई प्लेटफॉर्म पर आज इस मंच पर बहुत सारे लोग, आई थिंक हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आई एम श्योर दे विल बी मोटिवेटेड बाय योर टॉक। Thank you so much. Thank you, sir. But one Chetavani, one interesting point I want to make here is that ma'am is definitely from a rural background, definitely from a humble background. She has definitely fought a lot, but she's also an MBA. And that is a very, very potent combination of converting one's passion into business and using knowledge and education and exposure to do that in great style. And that's how she has done. Once again, thank you so much, ma'am. I will Okay, sir, invite. एक चीज और मैं आपको से मेंशन करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है जो भी लिसनर है उनको हर एक चीज सीखनी चाहिए। मुझे गाय का दूध निकालना भी आता है, भैंस का दूध भी निकालती हूँ मैं और इसके अलावा मैं अच्छी हॉर्स राइडर हूँ, मैंने हॉर्स राइडिंग काफी की है। इसके अलावा मैं बाइक राइडर हूँ, और मैं नेशनल शूटर भी हूँ। प्रेजेंट में मैं नेशनल शूटिंग भी कर रही हूँ। तो हमारी जो लाइफ है, मुझे ऐसा लगता है लाइफ भगवान ने हमें छोटी दी है, काम बहुत सारे करने हैं। तो सब लोगों को अपने जो एडवेंचर्स है लाइफ के, वो सब पूरे करने चाहिए और अपने वर्क पे भी फोकस करना चाहिए। Super, brilliant, ma'am. I think you are an athlete, you are a champion. You did 1500 meters race, you did shot put, you did discus throw, you did horse riding, you did bike riding. I'm sure there are many more. Okay, fantastic. So, yeah, on this happy note, I request Professor Prasad to start his Q&A. Over to you, Professor Prasad. Thank you, Professor Rao. Thank you, ma'am. It's been a very amazingly inspiring journey. And as I was sharing with Professor Sudhakar Rao, we need more such sessions because you represent the real India. There are a lot of people who can talk, maybe present PPTs, but finally at the end of the day, you represent that which India needs. And I think you have communicated a lot of things in your story very well. The background that you come from, the disadvantages you face and how you converted them into opportunities, and finally where you are at this stage, and also the mission orientation that you have
in what you want to do. And that's and a particularly important thing, because if you're going to do business with a social intent, I think there's no more deadly combination. That is absolutely deadly combination. Of course, lots of established businesses may feel bad about it, but I think this is the combination that India eventually needs. Thank you, ma'am, for introducing and showing how this can be done by very ordinary people at very minimal budgets. With Thank you that, so much. thank you, ma'am. Thank you. With that, we'll start the Q&A session. You have answered some questions in your talk already, so I will skip those questions. The first question that I would want to ask you is, now, in some of your videos, you mentioned that interest is more important than background. Now, in what you are saying, and a lot of people who want to watch this and do something about it in agribusiness, in mushroom or in agribusiness, how do you encourage interest in youth for agribusiness or for mushroom? What practical techniques do you use? यस सर, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। शायद ये मैंने सेशन में मिस भी कर दिया बोलना कि एंटरप्रेन्योर आजकल जो यूथ है वो, जैसे फार्मर्स बैकग्राउंड से अगर कोई यूथ आता है तो जो ये चीजें हमें सीखने की है, मतलब पेरेंट्स को सीखने की है। हमारा जो यूथ है उसको हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं वो अधिकतर यूथ को ये बोलते हैं कि आप ओनली स्टडी कीजिए, खेती करना आपका नॉट ए बिजनेस, ये आपका काम नहीं है, आप अपनी खेती कीजिए, मैं खेती कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी जो चीज है हमारे इंडियंस की, ये हमें कम करना चाहिए इसको, और हमें सीखना चाहिए कि हम जितने फार्मर्स हैं उनके बच्चों को फार्मर बनाना चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है। लोग बोलते हैं, अभी बहुत सारी रील्स वगैरह आती है तो उसपे ऐसा, मतलब रील्स में ऐसे कमेंट होते हैं कि मैं तो एक बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, मैं तो फार्मर हूँ। मुझे लगता है सबसे बड़ा ही फार्मर है आप। अगर फार्मर नहीं होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, क्या खिलाएगा? फार्मर नहीं होगा तो इंजीनियर क्या करेगा? और फार्मर नहीं होगा तो देश की जनता क्या करेगी? फूड ही नहीं होगा। और आजकल जो फार्मिंग है, पहले का जो जमाना था वो चेंज हो गया है। अभी जो फार्मिंग है वो बहुत ही टेक्निकली आ गई है। इसके अंदर एजुकेशन भी एंटर हो गया है और सारी चीजें, टेक्नोलॉजी भी अंदर आ गई है। तो हमारे जो यूथ है, मैं उनको सिर्फ इतना मैसेज करना चाहूंगी, इतना बताना चाहूंगी कि आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप फार्मर के बच्चे हैं और आप फार्मिंग कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा काम फार्मिंग है। अगर आप फार्मिंग करेंगे और फार्मिंग को साथ लेके चलेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप स्टडी पे ध्यान मत दीजिए, जब भी आप घर जाएं तो फार्मिंग की छोटी छोटी चीजों को सीखें, क्योंकि अगर हमारा यूथ फार्मिंग को नहीं सीखेगा तो हमें बाहर से लोगों को लाने की जरूरत पड़ेगी। आप बाहर के कल्चर में जाइए, आप विदेशों में जाइए, आप इजराइल जाइए। इजराइल के अंदर हर एक छोटा बच्चा फार्मिंग करता है। चाइना इतना डेवलप क्यों है? चाइना के अंदर हर एक छोटा बच्चा अपना काम करता है। अभी 6-7 का बच्चा कोई भी गैजेट्स बना के आपको दे देगा, वॉच बना के दे देगा। हमारे इंडियंस के पास हमारी क्वालिटी क्या है? हमारे पास लैंड है, हमारे पास फार्मिंग है। तो हर एक छोटे बच्चे को फार्मिंग आनी चाहिए। हर एक छोटा बच्चा जो 7th क्लास 8th क्लास में है उसको बिजनेस आना चाहिए कि फार्मिंग को कैसे कल्टीवेट करें, प्रोडक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने खेतों पे ले जाना चाहिए और नए जो यूथ है उनको फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का ही होगा और एग्रीकल्चर के बिना तो पिछला भी टाइम नहीं चला। तो एग्रीकल्चर इज द बेस्ट थिंग। Excellent messages, ma'am. I think first part is bring some emotion in, feel proud about it. ये जो हर एक काम तो होता है, start होता है emotion से, interest भी start उससे जुड़ा हुआ है. So if you get emotion into it, a lot of people can get connected. This is one thing. Another thing is keep it along with studies, क्योंकि you can get a lot of things along with studies. बहुत सारे चीज, exposure, ideas, बहुत कुछ आ सकते हैं when you study. ये भी आपने बताया है. एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मेंशन्ड इज द फ्यूचर ऑफ एग्री. ये जो देयर इज अ ट्रेंड इन इंडिया वेयर थिंग्स वर मूविंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड गोइंग टुवर्ड्स cities. And I am told in the ILO report, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया है 2024 का 5-6 दिन पहले ही, तो उसमें ट्रेंड रिवर्स हुआ है. कोविड से ट्रेंड रिवर्स हुआ है. एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जैक्टली एडिंग दैट. एग्री इनकम बढ़ाना है. People should not go into things which going into construction or going into rural. कर सकते हैं, अभी एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दैट बेस ऑफ फार्मर्स चिल्ड्रन, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसमें.
And the kind of work that you're doing, converting value adding, converting it into something where there's a big market, I think that's where a lot of people need to come in with good ideas like what you said. Thank you, ma'am, for giving us a good response to that answer. The second one is, ma'am, Abhi, you mentioned something about, I think I heard that you are now have 500 farmers doing contract, not contract farming, making mushrooms for you and then passing on to you. Now, how do you develop and support farmers? आपका system क्या है? How are you organized to help and support them? आपका organization क्या है? यस सर, फर्स्ट जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं मशरूम के अंदर, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हम सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए कि आप प्रोडक्शन कीजिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ में हैं। दूसरा, जो वुमन एंटरप्रेन्योर है और जो छोटे छोटे मकानों में अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उनको हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। ऑफलाइन सिखा के जो प्रोडक्शन सेल करना चाहते हैं हमारे को, वो हमें सेल कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग ये कहते हैं कि आप जब भी प्रोडक्शन लगाए हमें प्री कॉल करें, हमें कॉल करेंगे वो कि हम इतने केजी का प्रोडक्शन लगा रहे हैं तो आप परचेज करेंगे, तो हम उनको अप्रूवल दे देते हैं, तब हम उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि, देखिए इसके अंदर भी बहुत सारी पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनियां आई है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे फार्मर्स को बेवकूफ बनाती है और बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाती है और बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आपसे वापस प्रोडक्शन ले लेंगे, आप इतने हजार का किट लीजिए, इससे आप प्रोडक्शन कीजिए। और बाद में ऐसा होता है कि वो कंपनियां भाग जाती है और जो फार्मर्स है उनका अपना प्रोडक्शन सेल नहीं हो पाता है। तो हम पहले फार्मर्स को मार्केटिंग सिखाते हैं कि आप किसी के भरोसे ना रहिए, मतलब कोई भी जरूरी नहीं है आप मशरूम की बात करें, आप एग्रीकल्चर में किसी भी सेक्टर के अंदर जब तक फार्मर मार्केटिंग नहीं सीखेगा तब तक उसको ये प्रॉब्लम फेस होगी। तो सबसे पहले हम वुमन एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं कि आप अगर प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं तो पहले अपना एरिया लीजिए, अपने आसपास का जो एरिया है उनको मोटिवेट कीजिए आपका मशरूम खरीदने के लिए। और आप वेजिटेबल बना के भी दे सकते हैं, आप बिस्किट बना के भी दे सकते हैं, आप नमकीन बना के भी दे सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। और सेकंड ऑप्शन हम ये रखते हैं कि हम आपसे परचेज कर लेंगे, बट जितनी हमारी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मर्स को हम मैसेज कर देते हैं कि आपको प्रोडक्शन करना है, और उनका जो पहले का जो प्रोडक्शन चल रहा होता है वो अपने हिसाब से सेल कर रहे होते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम उनको मार्केटिंग सिखाएं साथ साथ के अंदर, ताकि आपका अगर फ्रेश माल अगर सेल नहीं हो रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर दिए नमकीन, बिस्किट और ऐसी चीजों में, और आपके गाँव में, गाँव के आसपास के लोगों को सेल कीजिए। और फिर भी आपको लगता है कि अब हम सेल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी टीम सपोर्ट करेगी। Fantastic, ma'am. I think there's a lot of value again in what you are highlighting. Yes. And here I have a supplementary question. Now, when you get into marketing, given the immense task that you have taken and the fact that prices are very high, competitor prices are very high, how do you tackle? Are there no issues coming from competition? Are people not spreading false messages? How are you handling this? एक्चुअल में सर जितने भी फॉल्स मैसेज आते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले ये बात करें कि जैसे ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के लिए बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारी कंपनियां प्रॉमिस करती है कि हम 5,000 में आपको ट्रेनिंग भी देंगे और बाई बैक एग्रीमेंट भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नुकसान उठाया है राजस्थान के अंदर। काफी नुकसान उठाने के बाद उन्होंने हमारे को कॉल किया है कि अब हमारे पास इतना प्रोडक्शन है, अब हम इसको कैसे सेल करें, तो उनकी भी हमने हेल्प की है। बट इसीलिए हम लोगों ने पहले अभी हमने एक, जैसे आपके साथ जो टॉक हुई है उसको भी हम व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे हम शेयर करेंगे। तो जो ऐसी चीजें हैं उनको हम पहले से ही अवेयरनेस लाते रहते हैं। मैं बात ही पहले मार्केटिंग की करती हूँ। जैसे कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी आदमी आता है या कोई भी इंसान आता है मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मेरा फर्स्ट सवाल होता है कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो यूट्यूब में ये देख के कि ये आदमी करोड़पति बना है, बट आपने इसके लिए क्या रिसर्च किया है और आपका जो माल है, आपका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ सेल करोगे? तो बोलते हैं मैडम वो तो आप खरीद लोगे। मैंने कहा चलो एक सेकंड के लिए सोचो कि मैडम गायब हो गए तो फिर आप क्या करोगे, उस कंडीशन में क्या करोगे? तो हम पहले मार्केटिंग सिखाते हैं। और जो हमारे कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर कभी जो, देखिए अभी मेरी जो कंपनी है अब थोड़ा उसमें फेमस हुई है और अब कंपनी को जानने लगे हैं लोग। तो कॉम्पिटिटर पहले रेट काफी हाई रखते थे, जैसे कोडिसेप्स की बात करें
तो 3 लाख रुपए किलो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे लोग, बट हम लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप 3 लाख रुपए के जी आपको यूज करना, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है, 15 डेज में आपको रिजल्ट आ रहा है। तो वही, और एक हमारे पास जो टेस्ट लैब रिपोर्ट है वो भी हम रखते हैं साथ में। इसके अलावा हम क्लिनिकल ट्रायल पे भी अब जा रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल अभी हमने अप्रोच की है, तो जिस दिन क्लिनिकल ट्रायल आ जाएगी उसके बाद तो हमारे को कोई मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस में है मेरा श्रूम लेडी और श्रूम कोडी, दोनों को क्लिनिकल ट्रायल में है। शायद नेक्स्ट मंथ तक हमारा क्लिनिकल ट्रायल आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमें जवाब देने की जरूरत नहीं रहेगी। Excellent, ma'am. I think you have highlighted how you're tackling competition, and it is heartening news that you're starting clinical trials, and the credibility of the entire process will step up once that is there. And the current tools that you're using, lab test report, as Yes. well as the communication messages that you're doing to garner the current market share. But I suppose you can go places, the market is much larger. But I think your start is good, and you have navigated your way through very wisely. अब सर हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जा रहे हैं। अगर बाहर जो इंडिया से बाहर या इंडिया में जो लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो हम उनको फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा सर, मैं आपसे मिली थी कॉन्क्लेव में, तो उसके बाद जो डिमांड आई है, काफी ज्यादा डिमांड हो गई है, तो हम लोगों ने अब फ्रेंचाइजी पे सोचा है। पहले फ्रेंचाइजी का सोचा नहीं था, बट अब हमने स्टार्ट कर दिया है कि आप फ्रेंचाइजी लीजिए, और कोई इशू नहीं है। अब जहां पर जितना अपना मार्केट बढ़ेगा उतना ही हम रोजगार दे पाएंगे। मेरा मकसद यही है। देखिए, लोगों को चीट करना कोई मकसद नहीं होता, और चीट करके कंपनी करोड़ों रुपए कमा सकती है, बट एक वो लिमिट टाइम के लिए हो सकता है, बट अच्छी टाइम के लिए नहीं हो सकता, लंबे टाइम के लिए नहीं हो सकता। तो मैंने लोगों से यही प्रॉमिस किया है कि जैसे जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल बढ़ेगा, वैसे वैसे हम वुमेन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ाते जाएंगे, और उनको जो रोजगार है बढ़ता जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लोग भी इसमें अभी इंक्लूड है, अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हैं। और हमारी कंपनी अभी ऑफर भी कर रही है शेयर होल्डिंग के लिए भी। अगर आप शेयर भी लेना चाहते हैं हमारे से, तो भी हम लोग उसके लिए रेडी है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े, और हमारी जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो भी बढ़े, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज हो। तो उसके लिए भी हम मतलब अप्रोच कर रहे हैं। और लोग भी अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के बाद काफी अप्रोच करने लगे हैं मेरे को। बट हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे लोग हमसे जुड़े। उनका टारगेट भी यही हो कि कंपनी लॉन्ग टाइम पे अच्छा कमाए। जरूरी नहीं है हम सडन 1 साल के अंदर हम करोड़पति बन जाएं, या 1 साल के अंदर हम अरबपति बन जाएं, बट धीरे धीरे चलें, बट अच्छे लोग हमसे कनेक्ट हो। तो उससे बस वही सर्च है अभी, कि कुछ लोग अच्छे जुड़ेंगे तो ही हम शेयर होल्डिंग देंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो ही हम फ्रेंचाइजी देंगे, ताकि हमारा जो नाम है वो भी बना रहे, और जो फेथ है लोगों का, सबसे बड़ा तो फेथ है, वो बना रहे। I can see that you're experimenting here also, ma'am. And Thank you. I'm sure with women entrepreneurs surrounding you, you will ensure that the prices remain reasonably low and the quality remains at the levels that you want it to. So I think you're also ring fencing it, scaffolding the whole thing, and I can see a good experiment out here, ma'am. आजकल का जमाना ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट से ही सीख सकते हैं। ऐसे कुछ मॉडल नहीं है कि वो चलेगा, ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। तो एक्सपेरिमेंट्स आर द बेस्ट वे टू लर्न. Yes, sir. Thank you for teaching our audience some very good business lessons. I must also add that I happen to be one of that category who have not eaten mushrooms, don't touch mushrooms, and I think now the next thing that I'll go and order is that. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. Back to Professor Rao. थैंक यू सो मच मैम। इतना इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। मेरा एक ही वरी है, हमारे पास जो समय है वो समय बहुत कम है। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी और देर हमारे साथ रुकिएगा और हमारे साथ बात कीजिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन एटलीस्ट sir. सेलेक्टेड क्वेश्चंस का आप आंसर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक दो सवाल है, उसके बाद मैं माइक ओपन करूंगा अपने जो फ्रेंड्स है जो ज्वाइन करें आज के वेबिनार के अंदर। मैं आपको और एक बात कहूंगा कि आज के वेबिनार के लिए बहुत सारे मशहूर लोग ज्वाइन किए हैं अलग अलग प्रदेशों से, ऑल ओवर इंडिया से जो ज्वाइन किए हैं वो है PhDs, डॉक्टरेट्स,
professors, people from chartered and CAs. सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है इसमें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है? वाओ, यस। वेरी गुड, वेरी आज ही गुड। मुझे मैसेज आया था सर का, हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडीएम है, एडीएम सर है, उनका मैसेज आया कि मैं भी आपका वेबिनार ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला कि सर आपको तो हम भीलवाड़ा में आके ही बता देंगे कैसे करना है, कि नहीं नहीं मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। आप उनका नाम बता दीजिएगा, मैं उनको वेलकम करूंगा। मैम, हाँ उनका बिल्कुल सर, उनका नाम क्या है? राजेश गोयल सर। राजेश गोयल सर, एक्सीलेंट। राजेश गोयल साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड I will continue this discussion, ma'am. I am welcoming all the other participants also who have joined. They're completely focused on what you're talking. They're enjoying this, and we are getting those messages as well. And this is very, very useful, not just for the people who are focused on agriculture, but people who want to do business on their own. There are several tips that are coming from you. Thank you so much for that. मेरा पहला प्रश्न, ये जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके बारे में, जो मशरूम कल्टीवेशन के बारे में, वो कैसे जानेंगी? सर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास 2 मॉडल है। आजकल तो मोदी जी के आने के बाद हर महिला के पास मोबाइल है, हर महिला अपने मोबाइल पे जा रही है। तो हमने फर्स्ट अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब के थ्रू भी वो जान सकते हैं और फिर हमसे डायरेक्ट वो फोन करके बात करते हैं। तो हम उनको डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू भी हम सिखाते हैं। बाकी हमारी टीम, हम क्या करते हैं, अगर 15 महिलाएं, हम जो भी महिला इंटरेस्टेड है उनको बोलते हैं कि आपके आसपास की 15 महिलाओं को आप इकट्ठा कर लीजिए। 15 महिलाओं के लिए हम हमारी टीम भेज देते हैं और वहां पे उनको सिखाया जाता है और उसके बाद उनको मार्केटिंग भी सिखाई जाती है। और उनमें से जो सिलेक्टेड महिलाएं होती है, जो इंटरेस्ट लेती है, 15 महिलाओं से लगभग हमें लगता है कि 1 या 2 महिलाएं हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे लोग जब भी, अभी भी हमारे यहाँ क्या है, रोज ट्रेनिंग के कम से कम 100 मैसेज आते हैं, बट उसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो 1 या 2 का रेशो होता है, 1 या 1%, 2% जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं और जब भी उनको टाइम हो तो हम एक टेलीफोन नंबर देते हैं उनको कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मशरूम ग्रो नहीं हो रहा है या फिर आपको टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, कोई भी समस्या हो, तो उसको हम कॉलिंग के थ्रू भी सोल्व करते हैं और वीडियो कॉल भी, व्हाट्सएप कॉल भी यूज लेते हैं अपन, बहुत बार हम व्हाट्सएप कॉल भी यूज लेते हैं। वेरी गुड। सो यू हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विथ यू एंड आपके जो टीम्स है वो लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन महिलाओं के लिए एक 15 मेंबर्स का बैच बनाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं और आप ट्रेनिंग देते हैं कॉल पे, वीडियो पे और एक्चुअली ऑन द ग्राउंड ऑल्सो यू मीट देम। वेरी गुड मैम। इसी से जुड़ा और एक प्रश्न है, ये महिलाएं जो है अगर फूड प्रोसेसिंग के अंदर इनकी जो भागीदारी है वो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए देश को या अपने अलग अलग जो निजी संस्थाएं हैं, सबके लिए एक 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 गोल है कि रूरल विमेन को इसमें भागीदारी बढ़ाना है। अगर वो गोल साबित कर सके और सच इफ यू कैन मेक इट कम ट्रू, व्हाट शुड बी डन बाय ऑल द सर पार्टीज कंसर्न्ड? देखिए सर, सबसे सिंपल और सबसे सीधी सी बात है, ये सबको पता है पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे कारण पता नहीं है। एक हमें मार्केट प्रोवाइड करवाना चाहिए और ऐसा मार्केट होना चाहिए जिसके अंदर सारी जो महिलाएं हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक मार्केट आप प्रोवाइड करवाइए। जैसे मंडी है, मंडी क्या करती है, अभी तो हमें मंडियों की भी जरूरत है, अभी तो फार्मर्स के पास मंडी नहीं है। अगर हम रियल बात करें और ट्रू बात करें तो हमारा जो गांव है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका दोनों का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तक कोई भी प्रोडक्शन करके वहां तक लेके जा रहा है तो उसका जो खर्चा है वो कितना आ रहा है और उस पर बहुत बड़ा एक है। तो मुझे लगता है कि तहसील स्तर पर मंडियां होनी चाहिए और मंडियों के अंदर तहसील स्तर पर ही एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी भी एक मंडी होनी चाहिए, मंडी जैसा ही मार्केट होना चाहिए जहां पर महिलाओं से वो प्रोडक्ट खरीदा जाए। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए महिलाओं के लिए। जैसे आप देखिए कलेक्टर को और इनको बहुत फंड दे रही है गवर्नमेंट कि आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, और उसकी जो फंडिंग है वो जारी है ऐसे ही। और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम हो नहीं रहा है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ ये होता है कि छोटा मोटा काम सिखा दिया जाता है महिलाओं को। उससे बेटर है कि आप एक, जैसे मोदी जी की पहल बहुत अच्छी है,
मगर नीचे जो लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे काम करना है, वो तो एक जो पैनल है पूरा उसको वर्क करना चाहिए। जैसे कि वन क्रॉप सब, फॉर एग्जांपल आप कोई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे मेरी बात करूं, मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती हूँ। तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेज जो क्रॉप है वो सबसे ज्यादा होती है। कोई भी हर एक इंसान मेज ग्रो कर रहा है। तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वो प्रोसेसिंग करे, वहां पर उनका काम हो, या फिर घर घर के अंदर छोटी छोटी सी यूनिट्स या 10-15 महिलाओं को एक यूनिट स्टैब्लिश करें। यूनिट के बाद जो मार्केट का पूरा काम है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उस प्रोडक्शन को खरीदती है, लेती है, और अगर बाहर मार्केट में देती है, तो लेडीज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की है कि लोग ठीक है आपने बिस्किट बना ली है, बट बिस्किट को आप सेल कहाँ करेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है, कितना आप गाँव में कितना सेल कर लेंगे? तो सबसे बड़ा है कि हमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, तहसील स्तर पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए। Excellent, ma'am. Excellent. I think you have identified उससे the पहले तो सर, उससे पहले तो सबसे ये है कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बात है, आपको मंडियों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी 60-60 किलोमीटर मंडियां हैं, तो तहसील स्तर पर आप मंडियों को लेके जाएं। और अभी तो फार्मर्स को ये और प्रॉब्लम है मंडी में, अगर बारिश आ गई तो उनके जो क्रॉप है जो ट्रैक्टर में लेके जा रहे हैं वो भी भीग जाता है। तो कम से कम इन्वेस्ट मंडियों पे होना चाहिए। invest more in mandis, bring और markets मार्केट, closer to tehsils, जी सर। closer to where these farmers are and और provide अब तो markets for them. इतना इंडिया बढ़ गया है, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो एक मार्केट ऐसा भी होना चाहिए, फॉरेन मार्केट, मतलब Export. जिसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो आपके पूरे इंडिया के अंदर, वो उस फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट ले जाके सेल कर दे। और फॉरेन जो हमारा, जो जैसे ऑयल की बात करें आप, मस्टर्ड, राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर बहुत ज्यादा मस्टर्ड होता है। अब ऑयल कंटेन आप निकालिए, ऑयल सबसे अच्छा है तो उसको फॉरेन में सेल कीजिए। अभी तो हम इंपोर्ट और कर रहे हैं शायद ऑयल, अभी हम इंपोर्ट की कंडीशन में हैं। और हमारा जो राजस्थान है वो फर्स्ट पोजीशन में है ऑयल के अंदर, मस्टर्ड के अंदर। तो हम ऐसी पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए सर, ये सब चीजें गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट को भी आजकल तो कॉर्पोरेट्स चलाती है, बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट्स है उन लोगों को ये चीजें करनी चाहिए। और जो सीएसआर फंड है जिनका, उनको, उन लोगों को छोटे छोटे से सीएसआर फंड में इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए, और प्रोडक्शन लेके उनको मार्केट तक पहुंचाना चाहिए। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हो गया इंडिया का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया को कोई नंबर 1 पर जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। Excellent, excellent, ma'am. What you prescribed is at tehsil level we should have markets, and government should invest in this and bring markets closer to farmers so that there is no wastage and they get access to markets and they are very happy about selling their products. On the other hand, export orientedness also has to be improved, and of course supply chain management is the key to erasing the farmers' worries. That's a fantastic thing, how to boost agriculture by building on supply chain management. Fantastic, ma'am. मेरा और एक प्रश्न है, वो है ये जो कृषि व्यापार है, कृषि व्यापार में महिलाओं के लिए और क्या टॉप 3 चुनौतियां हैं? टॉप 3 चुनौतियां क्या होंगी महिलाओं के लिए कृषि व्यापार में? सर, कृषि व्यापार में सबसे पहले फर्स्ट चुनौती है प्रिजर्वेशन। प्रोडक्ट को प्रिजर्व कैसे करें, मतलब एक जो जैसे मिल्क है, आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिल्क के अंदर आ रही है, और लोग जो फीमेल है वो भी गाय भैंस रखना पसंद इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जो उनका प्रोडक्शन है वो टाइम पे लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। और अगर जो बीच के अंदर जो वही सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि अगर कोई मिल्क उनका कोई कंपनी खरीदती है तो वो उनको वो रेट नहीं दे पा रही है। तो सबसे पहला तो उनका प्रिजर्वेशन, मतलब कूलिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। दूसरा मंडी, जो मंडी है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है, अभी एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि महिलाएं अगर किसी घर में है तो महिलाएं आगे होके कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रही है, या फिर अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी महिलाओं को लोन इतने हैं मतलब नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे ग्रुप में लोन मिल रहे हैं उनको
कि ठीक है, बट अगर महिला कोई एक एंटरप्रेन्योर जाती है और उसको बोलती है कि भाई मेरे को ये लोन दे दिया जाए, तो महिलाओं के नाम पे ना जमीन है, ना घर है, ना कुछ है, तो लोन कैसे देंगे उनको? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और फाइनेंस अगर महिलाओं को मिलता है और एजुकेशन महिलाओं को मिलता है, तो डेफिनेटली वो कुछ भी जो प्रोग्रेस है वो करेगी। और ये एक बड़ी चुनौती है फाइनेंस वाली, क्योंकि लेडीज पे अभी भी बैंक भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज के पास कुछ है ही नहीं गिरवी रखने को। लेडीज पे इस देश को ज्यादा भरोसा करना चाहिए, जैसा एविडेंस है भरोसा करने से क्या नतीजा निकला है। और जिस तरह आपने मशरूम फार्मिंग के लिए जो अलग अलग उपाय जो बताए हैं, बेनिफिट्स जो हेल्थ बेनिफिट्स आपने क्रिएट किया है, और आपने जिस तरह सारे 1500 विमेन को अभी तक आपने ट्रेन किया और ज्यादा लोगों को शायद आपने ट्रेन किया होगा। आई थिंक इन सारे जो बेनिफिट्स है ये तो मिलेंगे। एक महिला अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगी तो देश के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, और देश उनके बैंक्स के जरिए उनको फंडिंग का प्रोविजन करना भी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड क्रिएटिंग मार्केट्स। बहुत सर बढ़िया। महिलाओं के लिए फंडिंग के लिए एक परसेंटेज तय होना चाहिए कि इतना परसेंट, जैसे रिजर्वेशन लगाया है 33% हर चीज के करेक्ट, अंदर, तो करेक्ट। फंडिंग के लिए भी 33% रिजर्व होना चाहिए। ये महिलाओं को ही मिलेगा, तब जाके महिलाएं आगे बढ़ेगी। बाकी तो मुझे भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं जिस बैंक में जाती थी मुझे पूछते थे कि आपके नाम पे जमीन है क्या? मैं नहीं है। किसके नाम पे है? तो अब जैसे हस्बैंड के नाम पे है तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद रिस्क ले रहे हैं ना। हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप महिला एंटरप्रेन्योर कैसे बने? आपको तो सपोर्ट पहले से सपोर्ट सिस्टम से चल रहे हैं आप, तो सपोर्ट सिस्टम को हमें हटाना पड़ेगा। एक महिला एंटरप्रेन्योर को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसकी लैंड होनी चाहिए, उसको सिर्फ प्रेजेंटेशन की जरूरत होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन दे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, और बैंक को लोन अप्रूव करना चाहिए। वाह, अभी अभी आपने जो बात कही है वो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपके हस्बैंड और आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कैसे महिला एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं? नहीं बन सकते। केवल केवल आपके आइडिया देख करके, आपका प्रेजेंटेशन देख करके बैंक आगे चल करके आपको लोन देना चाहिए, आपको बढ़ावा देना चाहिए। दिस इज व्हाट इज योर डिमांड। वेरी गुड, Yes. fantastic. I will now request one question we will now request Dr. A.K. Saini from Jaipur. He wants to talk to you. Dr. Saini, over to you. नमस्कार मैम। हेलो सर, नमस्ते। मैम मेरा एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली डे टू डे लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ। आई एम आल्सो फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और ओके अभी सर। मैं जयपुर में ही सुन रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, मतलब मेरे लिए तो था लग गया, इट वाज अबाउट सर। कि मशरूम जो है बेसिकली दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वेज फूड। मतलब ये ओके। कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है। मतलब जब भी हम लोग एक ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, तो दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो नॉन वेज कैटेगरी में है। ठीक है, बट इट्स गुड, बट ये नॉन वेज कैटेगरी में तो आप इसको नहीं ले सकते। ये मिसकंसेप्शन हम लोग कैसे इस चीज को थोड़ा सा हटा पाएंगे, क्योंकि ये इसे 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 कंप्लीट फूड इतना। ओके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारी एक कम्युनिटी होती है यहाँ राजस्थान के अंदर, जैन। जी, जैन। पता है बिल्कुल जी। जी जी सर। तो उन लोगों का ऐसा था, इन्होंने हो सकता है कि कहीं पढ़ा हो, क्या किया हो, मुझे पता नहीं है। बट सर, जो हम जिस चीज को आंखों से देखते हैं, नॉन वेज हम किसको मानते हैं? जो जिसके अंदर जीव हो और उसको हम मारते हैं, उसको नॉन वेज मानते हैं। मतलब जिसके अंदर कोई लिविंग कुछ चीज हो और उसको हम, जैसे कि जो चलता फिरता हो, उसको नॉन वेज मानते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन है, हम व्हीट स्ट्रो से प्रोडक्शन करते हैं, जो मतलब गेहूं का जो भूसा होता है उसके अंदर। और ये नॉनवेज नहीं है, इसको हम फंगस बोल सकते हैं। ये फंगस है। फंगस से ये एक अच्छी एक क्वालिटी फंगस है जिसको हम खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अचार, आप लोग खाते हैं पिकल्स जो घर पे खाते हैं, उसमें अगर आप लोग कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं, और अगर ओरिजिनल आपके मदर ने या किसी ने पिकल बनाया हो, तो उसपे एक व्हाइट कलर का फंगस आ जाता है। तो क्या उस चीज को आप नॉनवेज मान सकते हैं? मतलब फंगस तो नॉनवेज होती नहीं है। फंगस एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर केवल पर्णहरित नहीं होने की वजह से इसको
हम फ्रूट में नहीं ले जा रहे हैं। बाकी अगर इसके अंदर एक चीज और होती पर्णहरित, तो इसको हम फ्रूट में भी ले जा सकते थे, मतलब वेजिटेबल में भी प्योरली अपन इसको बोल सकते थे। तो ये एक फंगस है और इसको ग्रो करने के लिए कोई भी लिविंग मटेरियल हम इसमें यूज नहीं लेते हैं। और ये एक सब्जी है जिसको हम खा सकते हैं। और इसके जो एविडेंस है वो भी आप रिसर्च पेपर भी इसके पढ़ सकते हैं। बाकी आप कभी भी जयपुर में रह रहे हैं तो आप मेरे फार्म पे आए और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज हम नहीं डाल रहे हैं जिससे हम इसको लिविंग बता सकें कि ये लिविंग है, क्योंकि हम भूसा डाल रहे हैं और भूसे के अंदर हम सीड डाल रहे हैं और सीड से ये ग्रो हो रहा है, ऑटोमेटिक ग्रो हो रहा है। इसके अंदर कोई भी कीड़ा या ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये नॉनवेज नहीं है। और ये जो चीजें हैं, जो वैसे तो बहुत सारे लोग प्याज भी नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि हम जमीकंद नहीं खाते हैं क्योंकि उससे पाप लगता है। तो वो ऐसी एक कोई धारणा है। अब उस धारणा को तोड़ने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा हमारे को। बट ये आप पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जल्दी ही टूटने वाली चीजें हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं आप सब लोग। आप देख सकते हैं कि इसमें जीव जैसा कोई चीज ही नहीं है, तो ये नॉनवेज कैसे हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। फैंटास्टिक, Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। और एक अगला सवाल पूछेंगे डॉक्टर अनीता जी। ओवर टू यू डॉक्टर अनीता। Thank you so much. It was very, very, very interesting session. अनु जी, आपने इतना इंस्पिरेशन दे दिया ताकि MBA जो बच्चे हैं, हम जो पढ़ाते हैं, एक क्लास में इतने बच्चे होते हैं, लेकिन जो स्टोरी लाइन आपने इतनी साफ सफाई से, सिंपल से, इतनी अच्छी से बताई। You have solved the nutrition problem. You have solved the pesticides and rest of the things around it, and also you have shown that how do we empower the women. तो मेरा से एक छोटा सा सवाल था कि आपने स्केलेबिलिटी कैसे एड्रेस किया? पार्डन मैम। स्केलेबिलिटी यानी आपने जो छोटी सी जगह से जो शुरुआत की और आपने अभी यू मस्ट बी प्रोड्यूसिंग इन perhaps in tons of managing it, no? तो वो प्रॉब्लम। How do you plan to scale it up? That is the question. बहुत सिंपल सा जवाब है और उस जवाब में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जवाब ये है कि जब आप सपने देखते हैं तो उन पे आप भरोसा करें कि ये सपना पूरा होगा। बाकी आपको स्टेप खुद गॉड बताएगा कि आपको कैसे कहाँ जाना है। अभी जैसे आज ही का आप एग्जांपल लीजिए। सर से मैं मिली हूँ, तो ये एक कैसे मिले हम, वहां पर गए मतलब नेशनल कॉन्क्लेव में जो हम गए थे इंडिया टुडे के। तो ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है। जैसे जो चीजें हम सोचते हैं, मैं बच्चों को भी यही बताती हूँ कि आप अपने सपनों पे भरोसा कीजिए। जो आप सोचोगे वो पूरा होगा। और मेरे साथ तो ये हुआ है, ये एक मैजिक है। आप जितना सोचोगे, जो सोचोगे वो बनोगे। और ये एक थिंग जो है, ये हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि जैसा इंसान सोचेगा वैसा बनता जाएगा। तो जैसा जैसा मैंने सोचा वैसा होता गया, और आगे मैं जैसा जैसा सोच रही हूँ वैसा होता जा रहा है। और फ्यूचर में भी मैं ये सोच ही रही हूँ कि मुझे क्या करना है। और आप बिल्कुल आप अच्छे से काम कीजिए, निष्पक्ष होके, मतलब अपने मन को साफ रख के अगर आप काम करेंगे तो कोई भी मुसीबत दुनिया की बड़ी नहीं होती है। मुसीबतें आती है और अपने आप निकल के चली जाती है और आप अपना काम करते रहते हैं। तो स्ट्रगल काफी मिले मेरे को, बट उन स्ट्रगल से मैं कभी पीछे नहीं हटी। मुझे लगा कि ये दिन होता है तो रात भी होता है और रात होता है तो दिन भी होता है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ती हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है, ये बाद में इसको मतलब रिकवरी हो जाएगी। तो इसी चीजों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आप टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स को आप ये सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट कभी पीछे नहीं रहेगा अपनी लाइफ के अंदर, और वो कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर करेगा। I think we must invite her for our one session to the college, sir, definitely. Done, थैंक done. यू सो मच सर। I will request her first to visit our ICFA University Jaipur because Sure. she's already in Jaipur, and then I'll request her to come to Hyderabad. Ma'am, Sure, sure. yeah, thank you very much. Ma'am, there is the next question. एक दो सवाल और ले सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। Fantastic, thank you. हमारे जो मिस्टर चैनुलू है, he is our senior colleague, हमारे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनका एक प्रश्न है
आपने आपके इनिशियल रिमार्क्स के अंदर आपने बताया था कि मशरूम खाने से डायबिटीज को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। उनका सवाल है कि वो खुद टाइप 2 डायबिटीज है, और मशरूम खाने से डायबिटीज किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वो मशरूम अडॉप्ट करने के लिए, मशरूम खाने के लिए अभी रेडी है। आपका सवाल उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सर टाइप 2 डायबिटीज मतलब आप इंसुलिन मतलब सर वो राइटिंग में उन्होंने मैसेज किया है या अभी कम्युनिकेट कर सकते हैं वो? Yes, yes. Sir, you can keep typing. Yeah, he's there online. He wants to take mushroom as a medicine and he would like to. ठीक है सर, मैं अभी बता देती हूँ उनको। Sure. अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, मशरूम सबसे पहले जो काम करती है, पहला जो वर्क होता है 3 डेज के अंदर मशरूम का, वो होता है इम्यूनिटी बूस्टर। मतलब आपकी इम्यून पावर को बहुत बूस्ट कर देती है। और जो सेकंड काम करती है वो होता है डाइजेशन। और जो ब्लड शुगर होता है, वो ब्लड शुगर के अंदर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनको इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रोंग नहीं रहता। इस वजह से उनका थोड़ा सा चलना फिरना या दौड़ना भागना एक मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाता है, और फिर वो हार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जैसे जैसे उनका इम्यून सिस्टम बढ़ता है 3 डेज के अंदर, वो अपनी वर्किंग जो आवर्स है उनके बढ़ने लगते हैं, और उससे उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होता है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी जो साइंटिफिकली कुछ चीजें हैं इसके अंदर, तो मैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करें तो क्यों ऐसा होता है उसका एक साइंटिफिक रीजन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसकी वजह से मशरूम डायबिटीज को कम कर देता है। तो वो मैं आपको शेयर करूंगी, आप उसमें चेक कीजिए। और काफी रिसर्च पेपर भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो कोर्डिसेप्स मशरूम पे डायबिटीज क्यों कम करता है, आप रिसर्च पेपर भी देख सकते हैं। बाकी आपका जो सवाल जवाब है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी। Sure. तो आप इसको जब लेके देखेंगे लाइव, जब लाइव आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे, तो आपको 3 डेज के अंदर ऐसा लगेगा कि मुझे वॉक करना चाहिए और मेरे में बहुत ही स्टेमिना अपने आप आया है, और उसकी वजह से आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और धीरे धीरे आपका आप जो कमजोर फील करते थे अपने आप को, वो कम हो जाएगा। और जब आप फील करने लगेंगे कि आप स्वस्थ है, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें खराब हो जाती है, मतलब सारी चीजें सही होने लगती है और सारी चीजें अच्छी होने लगती है, तो आप एंजॉय करने लगेंगे फिर। तो ये, और एक इसका होता है हाइपर टेंशन को ये कम करती है, क्योंकि ये हाई बीपी को कम करती है मशरूम। जैसे ही आप लेंगे, हाई बीपी है आपको तो लो करेगी, तो हाइपर टेंशन को भी रिलैक्स फील करती है। बाकी आपको रात के अंदर नींद भी बहुत अच्छी आती है मशरूम से। तो आप जैसे मशरूम को अगर नाइट में आप लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। बट मशरूम ऑयस्टर होनी चाहिए या फिर कोडिसेप्स होनी चाहिए। बटन मशरूम का जो डाइजेशन है वो 50% ही होता है, अपनी बॉडी जो कंज्यूम कर पाती है वो 50% ही कंज्यूम कर पाती है। बाकी ऑयस्टर और ऑयस्टर मशरूम और जितनी भी मशरूम है उनको लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ मशरूम को पानी में लिया जाता है, गर्म पानी में। कुछ लोग मशरूम को ठंडे पानी में लिया जाता है, कुछ मशरूम को भूखे पेट लिया जाता है, कुछ मशरूम को खाने के बाद लिया जाता है। तो अलग अलग जो आयुर्वेदा है, अपने आयुर्वेद जो चीजें होती है वो अलग अलग चीजों में, जैसे आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, चावल और दही। अगर आप चावल को दही के साथ खाते हैं तो एक अलग रिएक्शन आएगा, और चावल को अगर आप दूध के साथ खाते हैं तो एक अलग रिएक्शन आएगा। तो अपनी जो बॉडी है वो अलग अलग चीजों पे वो डिपेंड करती है। तो आप मशरूम यूज करें, और आपके जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पूरा रिसर्च पेपर उसमें शेयर कर दूंगी। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और शैनुल साहब आपसे जो वार्तालाप कर रहे थे वो इन्होंने टाइप किया है कि वो 3 टाइम्स ए डे 2 टाइप्स का इंसुलिन लेते हैं आज के दिन में। लेकिन आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए मैं उनका कांटेक्ट नंबर भी दे देता हूँ, और डॉक्टर अनीता भी आपसे कांटेक्ट रखेंगे, उनके लिए भी मैं आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट सवाल है जो बॉबी कुमार आपसे बात करना चाह रहे हैं। बॉबी कुमार, अगर आप तैयार हैं तो मैडम जी से बात कर सकते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी एक खत्म कर दीजिएगा, ये छोटा सा सवाल रखिए आप। बॉबी जी, शायद बॉबी जी बिजी है, और उनके प्लेस में मैं एक और सवाल पूछता हूँ। यही चैट बॉक्स में आए हैं ये सवाल। घर पे अगर स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाहे
तो कैसा करे और क्या करे, क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट में विस्तार से बता दीजिए। ओके, एक सिंपल सा मेथड है, आप सभी सुन लीजिए और सभी लगा भी दीजिए अपने घर पे प्रोडक्शन। इनको मैं सर को बता रही हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक जो व्हीट स्ट्रो आता है अपना, जो गेहूं का भूसा, गेहूं का निकलने के बाद जो बचता है उसको व्हीट स्ट्रो बोलते हैं। व्हीट स्ट्रो को आपको भिगोना है 24 घंटे के लिए पानी में। अगर आपके पास फॉर्मलिन और बाविस्टिन है तो उसके अंदर भिगो देना है। और आप आराम से जो सीड मंगवाएं ऑयस्टर मशरूम के, और उसको फिर आपको निकाल के और उसमें ऑयस्टर मशरूम के स्पोन डालने हैं। और उनको थैलियों के अंदर, जो 5 किलो या 6 किलो की जो पॉलीथीन आती है उसके अंदर भरकर, पॉलीथीन में छेद कर कर, और उन पॉलीथीन को आपको हैंगिंग मेथड, जो हैंग करते हैं अपन, वैसे लगा देना है। या फिर आपके घर पे कोई टेबल हो और टेबल के चारों तरफ आप कपड़ा लगा के टेबल के नीचे आपको रख देना है। तो वो विदिन 15 डेज व्हाइट होने लगेगी। और व्हाइट होने के बाद में 30 डेज के बाद, 35 डेज के अंदर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको तोड़ के आप सब्जी बना सकते हैं। अगर आप केमिकल यूज नहीं करना चाहते तो आपको व्हीट स्ट्रो को गर्म पानी में 2 घंटे उबालना है। 2 घंटे उबालने के बाद आपको जो स्पोन है ऑयस्टर मशरूम के, वो मिलाने हैं। 10 किलो व्हीट स्ट्रो के अंदर आपको 1 किलो ऑयस्टर मशरूम का सीड मिलाना है और उसको आपको उगाना है। और अगर इससे भी अच्छे से डिटेल चाहिए आपको, या आप हमारे सामने वर्क करना चाहते हैं, तो हमारे ट्रेनिंग सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे जो वेबसाइट है उस पे जाके आप लिंक करें, ताकि हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और ये बहुत इजी मेथड है, आप घर पे आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। डार्क रूम चाहिए तो डार्क रूम के लिए आप किसी भी जो छोटा रूम है उसको डार्क करके आप काम कर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सवाल जवाब का सेशन रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला हमको। और जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम श्योर ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स हु आर अराउंड द स्क्रीन, उनको भी फायदा हुआ होगा। और जितने भी क्वेश्चंस है और जितने भी और आगे सवाल है, आपसे कनेक्शन जो मांग रहे हैं, इससे पता चलता है कि आगे जाके भी ये लोग आपसे कांटेक्ट रखेंगे और आपसे सीखेंगे। और मेरे मेरे ख्याल में जितने भी हम वेबिनार्स किए हैं, जितने लीडरशिप कॉन्वर्सेशंस हमने कर चुके हैं अभी तक, 143 किया है, बट ये वाला जो 143rd सेशन जो अभी चल रहा है, ये बहुत ही अलग रहा है, बहुत ही स्फूर्तिदायक रहा है। आप एक बहुत ही साहसी महिला है, और जिस तरह आपने अपने लाइफ को बिल्ड किया, अपने करियर को बिल्ड किया है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पैक्टफुल। बहुत सारे लोगों को, मेन और वुमेन, सबके लिए ये बहुत ही सबको प्रभावित करेगी ये वाला जो सेशन है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हमने ड्रॉ किया है, इससे मैं 1 मिनट लूंगा और इसको समराइज करके यहीं से उसका फिर आपके परमिशन लेके क्लोज करेंगे। जस्ट 1 मिनट। मैम, दिस सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज you have blended the thinking of going back to your basics and roots, and also adopting new technologies and new education. तो आपका फोकस पहले रहा था कि आप पैशन को आगे बढ़ा करके एजुकेशन, एक्सपोजर और आपके स्किल्स, ये 3-4 चीजों को आपने मिला करके आई थिंक एक करियर आपने जो बनाया है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। सेकंड, जिन कठिनाइयों को आप सामने करके बचपन से लेकर इवन अभी तक भी चल रहा होगा, जितने चुनौतियां हैं, आई थिंक एवरीवेयर देयर इज अ स्ट्रगल। आपने बताया कि स्ट्रगल विल ओनली गिव यू सम स्कोप फॉर लर्निंग, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो लर्निंग। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट। जिस तरह मिथ्स है, जो धारणाएं हैं लोगों के मन में, और वो तोड़ने में आप फ्रंट लाइन में आ चुके हैं। आप बहुत ही अच्छी तरह से आपका जो पेशेंस है, और पेशेंस के साथ एक एक करके वो मिथ्स को आपने तोड़ दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इनोवेटिवली जो मैं सोच रहा था, आपको मशरूम के ऊपर फोकस करना था, आपको एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना था, लेकिन जब डाउट्स है लोगों के मन में, आपने इसको रिपोजिशन किया है। आपने इसको हेल्थ बेनिफिट्स से हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा जोर डालकर उनको रिपोजिशन करके उनके लिए बहुत ही आसान बना दिया, और देन एक्सेप्टेंस बढ़ गया। ये बढ़िया है, ये तो बहुत स्ट्रेटेजिक है, और आपने जो काम किया है इज वेरी वेरी गुड।
और फार्मर इकोनॉमिक्स बढ़ाने का आपको जो मोटो था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी भाषण देते हैं वो लोग फील्ड से अलग होकर के भाषण देते हैं। जब आप फील्ड में ही है, आप यही एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही है और आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और आप एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट टू विमेन, ये 3 विभागों में आप बहुत भरपूर काम किया है। एंड दिस बैलेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन और वुमन, एनीबडी। I think you are a great individual who has balanced all these things and helped us look at these possibilities and take it forward in a manner that you can help the community. जैसा बढ़ेगी मार्केट, जैसा आपने कहा था, जैसे बढ़ेगी मार्केट, तो India also will grow along with that. So that's a fantastic way of bringing mushroom to the center of our discussion in this country. This is amazing way it is. अगर आगे जाके भागीदारी बढ़ाना है तो आपने सोचा है कि फ्रेंचाइजिंग करेंगे और इक्विटी भी देंगे, लेकिन सही लोगों से आप जुड़ेंगे। द पीपल हैव टू बी गुड इफ यू वांट टू ग्रो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो लोग बातें करेंगे, ज्यादा बड़े बड़े कंपनियां आएंगे, जैसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे कैन फूल पीपल, यहाँ पे भी जो पार्टनरशिप करते हैं फूल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही अलर्ट है और आपका ये पॉलिसी है कि लॉन्ग टर्म फायदा हम देखेंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स को हम नहीं देखेंगे। दिस इज अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आपका जो सजेशन है गवर्नमेंट के लिए to improve supply chain management, bring markets closer to farmers and provide education at tehsil level, markets and education and funding at tehsil level, at the level that is closer to the farmers, it will be a big boost for women. And this is one mantra that we need to focus on it. Instead of talking, we need to walk the talk and work on this thing. And जिस तरह आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जोर दिया है, जिस तरह आपने आपका खुद का लाइफ का एक एग्जांपल बना के बताया है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जिस प्रोसेसेस आपने तो R&D किया है, आपने तो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, आपने कुछ पेटेंट भी किया है क्या? ये एक और सवाल है, आप बाद में इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़कर you have become the biggest evangelist of mushroom, and I'm sure there are very specific things because of your contribution this segment is moving. And हम ये भी मानते हैं और बहुत खुशी मिली आपसे सुन के कि अपने सपनों पे भरोसा कीजिएगा, believe in your dreams, then you can make it big and they will come true very soon. That's very nice. Thank you very much, ma'am. एक ऐसे ही लाइव सवाल है, सुनने में मिला है कि प्रधानमंत्री भी कुछ मशरूम खाते हैं और बहुत बहुत महंगे वाली मशरूम है। वो क्या मशरूम है, कहाँ से आता है वो मशरूम, आपको कुछ पता है? हाँ, यस सर। प्रधानमंत्री जी भी कोर्डिसेप्स मशरूम भी लेते हैं और रेसी मशरूम भी लेते हैं, बट ये मशरूम के फील्ड को ज्यादा उसमें ग्रो करने में या फिर उसकी वजह से ये बनाया गया है। बट ऐसा नहीं है कि वो कहाँ से मशरूम आता है, वो मशरूम नॉर्मल मशरूम है। बट जैसे वीआईपी लोग अगर कोई चाय भी पी लेते हैं तो चाय भी वीआईपी हो जाती है, तो वैसा ही है। तो कोर्डिसेप्स मशरूम और ऑयस्टर, दुनिया की सबसे अच्छी मशरूम ऑयस्टर मशरूम है, क्योंकि एक लो कॉस्ट के अंदर आपको बन रही है। इसके अलावा आपको ये प्रोटीन अच्छा दे रही है 35%, पर इसके जो रिजल्ट है वो काफी 15 के अंदर आते हैं। और जो कोर्डिसेप्स मशरूम है उसके जो रिजल्ट है वो विदिन 3 डेज 4 डेज के अंदर आते हैं। वो थोड़ा फास्ट काम करता है, ये थोड़ा जो ऑयस्टर मशरूम है ये थोड़ा 15 डेज में आपको रिजल्ट देता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, जैसे गेहूं और अपने बाजरे में डिफरेंस है। गेहूं इतने सालों से हम खा रहे हैं, बट बाजरा जो है अब वापस प्रमोट कर रहे हैं, उतना सा फर्क है। बाकी मशरूम सब सेम है। बाकी एक आपका जो आंसर था पेटेंट का, तो पेटेंट मैं नहीं करूंगी कभी भी। उसका एक बहुत 2 रीजन है। पहला तो मैं नहीं चाहती कि पेटेंट करने से जो ये प्रोडक्ट है वो मार्केट में बाहर तक नहीं जाए। कोई भी कंपनी पेटेंट कराए अपने प्रोडक्ट का, जो मैं डाल रही हूँ, मैं जो मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो जो मैं डाल रही हूँ वो मैं नहीं चाहती कि पेटेंट के थ्रू बाहर जाए और आराम से ये लोग यूज करें। और तीसरी चीज, इस मीटिंग में अभी जो कुछ लोग पार्टिसिपेट हैं और जो बाद में इसको सुनेंगे,
उनके लिए मैं सबसे अच्छी एक चीज बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ के अंदर एक प्लांट जरूर लगाएं। जिंदगी में एक प्लांट आपको जरूर लगाना है। और अगर आपके बेटी है तो उसको बहुत अच्छा पढ़ाएं और उसको बिल्कुल एक शेरनी की तरह पालें। उसको लड़की की तरह बिहेव ना करें कि अरे इधर जा रही है उधर जा रही है। और उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उसको आप अच्छे से गेम्स में इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। और अगर आपके लड़की नहीं है तो आप एक लड़की अडॉप्ट करें और उसको भी पढ़ाएं। और इसके लिए आपकी जिंदगी में अगर आपने 2 काम कर लिए तो ये आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा एक मिशन होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा ये ड्रीम है कि मैं बहुत सारी बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। ये एक ड्रीम है। ये होगा सक्सेसफुल बट एक टाइम लगेगा। बट मैं आप लोगों के थ्रू ये कर सकती हूँ अभी, क्योंकि आप जितने लोग सुन रहे हैं वो काफी अच्छी फर्म है, काफी पैसा है, सब कुछ है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और एक लड़की के लिए एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ आप कॉस्ट जो भी आपको लगे कि ये लड़की पढ़ने के लिए अच्छी है और जो गरीब फैमिली से हो उसको सपोर्ट करें। बढ़िया। बाकी थैंक यू सर। आप थैंक यू और वेरी कोई? मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। अंत में मैं ये कहूंगा, आपने जिस तरह लेसन्स हमारे लिए दे करके जा रहे हैं आज, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी आपने कहा है कि इफ एंटरप्रेन्योर इज नॉट वर्किंग इन द फील्ड, हाउ ही विल बी और शी विल बी सक्सेसफुल। सेकंड, अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो पहले स्टडीज कंप्लीट करो। बिल्कुल। एंड तीसरी बात जो आपने कही, लाइफ इज वेरी शॉर्ट बट यू हैव टू वर्क अ लॉट। So Yes. I think these are very very interesting points that you have mentioned. Thank you, ma'am. आपका कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए इक्फाई ग्रुप के तरफ से आपको मैं धन्यवाद कहूँगा. Thank you so much for Thank you, joining sir. us and spending this valuable time with us. And we will start eating mushroom. We will start cultivating mushroom. And this is a very interesting lesson. We have to implement it now. बातें बहुत हो गए. I think we have to go back and implement. Right? Thank you so Yes. much, ma'am. Thank you, sir. I want to also thank Professor Prasad for moderating, and I want to thank all the participants. They're all experts in their own fields. They have come to listen and learn from you. उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा. And अगले हफ्ते, next Friday on April 5th, we are going to meet again at 6:30 p.m. in a discussion with yet another leader. We will share the communication. Till then, go to amaldaorganics.com and learn about what Mrs. Anu Kanwar is doing. Understand how at home level you can do mushrooming. There are mushrooming opportunities for all of us, and start eating mushrooming to create better health, better nutrition, and better immunity, so that we can develop our immunity and health, strengthen women, and thereby strengthen the country as a whole. Thank you all and good night. Thank you so much, sir. Namaste. Thank you.